all of you were feeling unhappy that no one was purchasing my goods and that I would have to carry them away. Therefore, by your will only, I have distributed them without charging. So similarly, Prabhupada is saying. So this pastime is of Srila Chaitanya Mahaprabhu. So we all know when Krishna also appeared, then also uh, no one was ready to follow him, even though he spoke the message of Bhagavad Gita. He gave this message that everyone surrender unto me, become my devotee, offer obeisances to me. But other than Pandavas, Bhishma Pitama, and few others, Kunti Maharani, there were no one who was ready to surrender to Krishna. We can see in the epic of Mahabharata that mostly it is uh, people are envious to Krishna only, and that is the situation even right now as well. Even though uh, we have Bhagavad Gita given by Krishna, but no one is basically ready to follow that instruction. So even when Chaitan Mahaprabhu he appeared, he was Krishna himself in the age of Kali Yuga, just 500 years ago. So he was trying to distribute this love of Godhead to everyone, and he exclaimed that to among his associate that I came here basically uh, in this earth and in India, some part of the India, and I tried to sell my emotional, ecstatic love. Although I came to Varanasi to sell my goods, there were no customer, and it appears necessary for me to carry them back to my own country. All of you were feeling unhappy that no one was purchasing my goods, and that I would have to carry them back. Therefore, by your will only, I have distributed them without charging. So definitely, no one can pay the price for devotional services or for achieving love of Godhead, because we when we come to this material world, then we have to suffer at every moment. We may be thinking I'm working in a very sophisticated MNC environment, I'm this and that in that particular organization, but one has to see how much suffering he has to undergo because of the force of illusory energy. He even don't get enough time to eat his daily bread, whatever he's eating, or he even at the time of sleeping he's always in tension. Other than Saturday and Sunday, if we just talk about once Sunday will arrive, then again tension is there. Now I am going to have Monday blues. Now what will happen on Monday? Again, same work, same pressure, same arguments, everything is going to be same. So everyone is suffering at every moment. They are working uh, day and night. Sometimes you will see like people in some of the metropolitan cities, those who are thinking, oh, I have acquired very nice position, they may be working like even 18 20 hours. And then also for what? The daily bread that they are getting, when they were not at all earning, they were living with their parents, they were having enough facility, but now they may be getting even less than that. They may be working very hard. So even they don't understand that they are suffering, but still they are suffering, and that's why Lord again and again appear in this material world just to revive their original consciousness, that is Krishna consciousness, so that they can love Krishna. And when they love Krishna, automatically they develop all the symptom of a purity, that is they automatically become purified of all the contamination in this material world, and they become eligible to return back home, back to Godhead. So Chaitan Mahaprabhu also tried that everyone takes to the holy name, but then also no one was ready to take. Everyone was indulged. No, maybe I will read all the scriptures, I will try to understand, I will do some philosophical speculation, I will try to do yoga, I will try to follow some guru who will claim that, oh, I am a self-made guru, I will give some other process or of self-realization or something or the other. And no one was ready to basically listen to his message that, okay, chant the holy names purely and achieve love of Godhead. So similarly, Srila Prabhupada is writing that when we began distributing the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the West countries, a similar thing happened. In the beginning, we were very disappointed for at least 1 year because no one came forward to help this movement. So Srila Prabhupada, when he reached West, he tried very hard to push on this movement. He was conducting every week lectures for Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, but no one was ready to listen to him. Some people, they somehow his join his program or listen to his lectures, but they were all so conditioned in the materialistic way of life
Some of them are old member of the society, so they were just thinking, oh, this is good, this is all good for fun, but no one was ready to practice the devotional services. No one was ready to accept Krishna as supreme personality of God. And then finally, rest is history, that how then he completely depend upon the holy names. He just chanted sitting beneath a tree and started chanting. He just focused on the holy names. He started chanting, and then slowly and slowly, just by listening to his chanting, uh, many young boys and girls they joined, and then slowly and slowly, Krishna consciousness got established in the West. So, if Lord wanted at the very first moment, he might have sent everyone, but basically, Lord is proclaiming himself that the Yuga Dharma of this age is the chanting of the holy name. So that is, even no philosophical speculation. People are so dull headed that they will not be able to understand all the philosophy. They will not be able to understand how much they are suffering. They will keep on suffering and suffering. Only just by this holy name they can get purified and they can understand their position. So, so that's why Srila Prabhupada is saying that by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, some young boys and girls joined the movement in 1966. Of course, we distributed Sri Chaitanya Mahaprabhu message of Hare Krishna Mahamantra without bargaining or selling. As a result, this movement has spread all over the world with the assistance of European and American boys and girls. We therefore pray for all the blessing of Sri Chaitanya Mahaprabhu upon all the devotees in the Western world who are spreading this movement. This is from Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, 25th point, 168 to 70. So we'll all chant one round of Hare Krishna Mahamantra, and then we'll understand the remaining part of the session on Srila Prabhupada. Sorry, I just spoke in English. Everyone is comfortable with English, or should I switch back to Hindi only? Please. Yeah, Prabhuji, we're comfortable. Yeah, we are comfortable, Prabhu. Okay. Thanks for joining, Prabhu. So we'll all chant one round of Hare Krishna Mahamantra, and then we'll understand. I hope Raghu Prabhu, I was speaking to you, right? You joined. Yes, Prabhu. Yes, Okay. yes. Thanks for joining. Thank you. So we'll chant one round of Hare Krishna Mahamantra, and then we'll understand today's session. Jai Shri Krishna Chaitanya. Jai Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara. Shri Advaita Gadadhara. Shivasadi Gaur Bhaktivinoda. Srivasadi Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare. Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare. Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Hare. Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare. Hare 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 Rama 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 Hare Rama Hare. Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Rama Hare. Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Hare Rama Hare. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare. Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare. Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare. Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare. Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare. Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare. Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare. Hare
Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare. Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Hare
हरे Hare हरे, Hare. हरे कृष्णा Hare हरे Krishna, कृष्णा, Hare हरे Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा हरे Krishna, हरे, Hare Hare. हरे राम Hare हरे Rama, राम, Hare राम Rama, राम Rama हरे Rama, हरे, Hare Hare. हरे Hare कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे, Hare Hare. हरे Hare राम Rama, Hare राम Rama, राम Rama हरे Rama, हरे, Hare Hare. हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare कृष्णा Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Rama Ram Rama Ram Rama Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Rama Ram Rama Rama Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे, कृष्णा हरे हरे,
हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य नित्यानंद प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री वासवी गौर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद। थैंक यू। तो आज हम लोग श्रील प्रभुपाद के विषय में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले सोचा था एक पीपीटी बनाने का, लेकिन भगवान की कृपा से ऑलरेडी किसी डिवोटी ने पीपीटी एक बनाई हुई है। क्योंकि जनरली इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रभुपाद की लाइफ से रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं वो प्ले करते हैं हम लोग, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ऐसा प्ले करना तो पॉसिबल नहीं है, और इसमें प्ले करने पे मुझे पता नहीं कैसा ऑडियो वगैरह होगा। तो स्लाइड पैक ही हम लोग कवर करेंगे, और जो वीडियो लिंक्स हैं वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। जब भी आप लोगों को समय मिलेगा तो आप लोग पढ़ने की कोशिश, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। तो आज हम लोग श्रील प्रभुपाद के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो अ, जैसा कि पहले के सेशंस में भी हम लोगों को पता है कि भगवान ने किस तरीके से इस भौतिक सृष्टि की रचना करी है। तो इस भौतिक जगत की रचना भगवान ने ऐसा नहीं कि ये कुछ उनके लिए करना जरूरी था, लेकिन जब इंसान को इच्छा करता है कि भगवान से मुझे दूर रहना है, जैसे कि कई बार लोग इच्छा करते हैं कि नहीं, मुझे अब भले ये मुझे बहुत प्रेम करता लेकिन उससे मुझे दूर जाना है। भले हम लोगों को लगता है कि ये हमारे पिता हैं माता हैं, लेकिन कुछ अलग हम दूर रहेंगे तो कुछ हमारी इंडिपेंडेंस रहेगी, कुछ हम जैसा लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो उसी तरीके से भगवान के पास में भी जितने भी जीव होते हैं, कुछ कुछ जीव डिजायर करते हैं कि क्यों हमेशा भगवान के साथ ही रहना, क्यों हमेशा उसी तरीके का एटमॉस्फेयर एंजॉय करना जहाँ पर जहाँ पर आराम ही आराम है, और आराम से ही मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं कुछ अलग एडवेंचर करके देखें, कोई क्यों नहीं भगवान से दूर रहें। तो भगवान जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे परम पिता हैं जो अगर कोई भगवान से दूर भी रहना चाहता है तो उसके लिए भी अरेंज करते हैं। तो उसके लिए भौतिक जगत बना हुआ है, ठीक है, तुम्हें अपनी सेंसेस एंजॉय करने हैं, तुम्हें इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना है, जो मर्जी वो करना है। जो मर्जी वो करने का मतलब कि अच्छे की जगह कुछ बुरा भी करने का मन है, तो जो भी तुम्हें करना है वो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई बुराई नहीं हो सकती, कोई भी बुरा कार्य नहीं कर सकता। तो उसके लिए भौतिक जगत बना हुआ है कि जिसमें वो जब जैसे ही वो इच्छा करता है इस भौतिक जगत में आ जाता है। तो इस भौतिक जगत में जैसे हम लोग लास्ट सेशन, अगर आपने संडे वाला मेरा अटेंड किया तो बताया था मैंने कि जो वन हाफ है यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसमें जो भी ओबीडिएंट इनहेबिटेंट हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सो द ओबीडिएंट इनहेबिटेंट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हैप्पीली कंटिन्यूड देयर लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा। जो भी भगवान को प्रेम करते हैं वो वहीं पर रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, ऐसा लगता है कि अरे पूरा वर्ल्ड में तो पॉपुलेशन भरी पड़ी हुई है, इतने सारे लोग हैं,
लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इससे कई गुना बड़ा है। जो मटेरियल वर्ल्ड है वो 1/4 हिस्सा है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड 3/4 है, यानी कि जो भगवान के साथ रहना चाहते हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो हम लोग समझ भी सकते हैं, कोई भी अगर समझदार इंसान होगा वो आराम से, अगर उसको कोई बोले कि तुम आराम से, तुम्हें फार्म हाउस में तुम रह रहे हो, तुम्हें जब समय पे चाहिए तुम्हें खाना पीना सब कुछ मिलेगा, तुम्हें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, तो कोई मूर्ख ही होगा वो बोलेगा कि नहीं यार, मुझे तो क्या है कि ये मेरा पैशन है कि मैं कुछ बहुत मेहनत करूं, मैं 20 घंटे काम करूं, 4 घंटे सोऊं, और नाश्ता भी जब मुझे करना हो मैं लैपटॉप में मीटिंग के साथ ही नाश्ता भी करूं, और दोपहर का खाना भी खाऊं, रात में भी वैसे ही खाऊं, परिवार के लिए बिल्कुल समय नहीं मेरे पास बचे, और बस मैं बॉस के साथ ही मेरा ज्यादा समय बीते। तो इस तरीके का लाइफस्टाइल बहुत ही कम ही लोग होंगे जो एग्री करेंगे कि हाँ मैं इस तरीके का लाइफस्टाइल लूंगा, देन कंपेयर टू कि आराम से एंजॉय करो, जो तुम्हें चाहिए वैसे ही नेसेसिटी सब मिलेगी। तो चॉइस हम लोग यही करेंगे कि हाँ आराम से। तो लेकिन गलती से ऐसा होता है कि उसके बावजूद भी कुछ लोग चॉइस कर लेते हैं, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसा है कि कुछ लोग बहुत जिनके माता पिता पूरी तरीके से संपन्न भी होते हैं, तब भी वो बोलते हैं नहीं हम तो जाके होटल में बर्तन ही मांजेंगे, और वो मांजने चले जाते हैं। तो उसी तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कुछ, उसके बावजूद भी कुछ हम लोग के जैसे मूर्ख लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं हम तो अलग से कुछ करेंगे, अलग कुछ करके दिखाएंगे, और इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो तो जो भी भगवान के प्रति रिबेलियन होता है उसके लिए भगवान ने भौतिक जगत बना रखा है, लेकिन भौतिक जगत भी इतना खराब नहीं बनाया था जिसको हम लोग खराब बनाते जा रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, अगर इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ना किया जाए, हम लोग दुनिया की इंडस्ट्रीज जो हमने इसमें बना दी हैं, जो इतना गंदगी नदियों में डाल रहे हैं, और जैसा पॉल्यूशन हम लोग ने पूरे एटमॉस्फेयर में भर दिया है, या जितना भी अपने पैशन के चलते कैसे हम लोग अगले को एक्सप्लॉइट करेंगे, खुद एंजॉय करेंगे, ये सोच सोच के जिस तरीके से हम लोग ने इंडस्ट्रीज, जिस तरीके से एमएनसी सेक्टर, इन सबको सिर्फ खाली अपने प्रॉफिट के लिए बना दिए, तो उसमें आखिरकार हम ही लोग पिसते जा रहे हैं। अदरवाइज ये भौतिक जगत इस तरीके का है कि अभी भी आज की डेट में भी ऐसा है कि इसमें इतना लैंड, इतना वाटर है कि जितने भी इंसान है, या इंसान जानवर जितने भी, उनके 7 टाइम्स फूड प्रोड्यूस होता है। और 7 टाइम्स फूड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। ऐसा होता है कि कई लोग भूखे मर जाते हैं लालच की वजह से, वरना 7 टाइम्स यानी एक हिस्सा हम लोग खा पाते हैं, 6, उसका 6th पार्ट जो होता है सब्जियां या वेजिटेबल, वो सब सड़ जाते हैं लालच की वजह से। वो लोगों का, लोग स्टॉक कर लेते हैं, लोग सोचते हैं कि महंगे दामों में ही बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे, या फिर उसे स्टॉक करके रखेंगे। या कई बार जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें कई बार होता है फूड स्टॉक बहुत प्रोड्यूस होता है, वो ले जाके समुद्र में बहा देते हैं कि प्राइजेस रेगुलेट रहें, प्राइजेस बहुत कम ना हो जाए। तो यानी कि बेवकूफी पूर्ण तरीके से कार्य करने की वजह से मिसमैनेजमेंट होता है, और कई बार लोग भूखमरी वगैरह का शिकार होते हैं। वरना भगवान ने ऐसा भौतिक जगत नहीं बनाया हुआ है। यहाँ आराम से लोगों को अपनी जो 2 वक्त की रोटी है, या जितनी भी औषधियां, अगर देखें आयुर्वेद, जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। हो सकता है हम लोग जानते ना हो, कई प्लांट हमें लगता हो कि बेकार किए हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी प्लांट भगवान ने ऐसा नहीं बनाया जिसकी कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो। तो भगवान ने पूरा, ऐसा भी नहीं कि दवाइयाँ, अगर ठीक है सब कुछ पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर रहेंगे तो दवाइयाँ कहाँ से आएंगी। नेचर में हर चीज का क्योर भी मौजूद है, और डेफिनेटली जितना आपका लाइफ स्पैन है उससे ज्यादा कोई नहीं जी सकता। या कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो, ये अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि अगर आप हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर लो, लिवर ट्रांसप्लांट भी कर लो, जितना आपका लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है वो उतना ही रहेगा। ये हो सकता है कि हाँ थोड़ा बीमारी के सिम्टम उसकी वजह से कम हो गए आपको, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हो सकता है उस आपने जो करा है उसके चलते साइड इफेक्ट के थ्रू बहुत सारी चीजें, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सफरिंग है वो होगी ही। वो हो सकता है ऑपरेशन के चलते जो उसकी हीलिंग में पेन हो रहा है उसके चलते ज्यादा आप कई बार बढ़ा लेंगे, उसे एग्रीवेट कर लेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि विज्ञान के द्वारा हम लोग लॉ ऑफ कर्मा को चेंज कर सकते हैं। अगर विज्ञान के द्वारा लॉ ऑफ कर्मा को चेंज किया जा सकता होता तो आज जितना ज्यादा लोग गॉड कॉन्शियसनेस से दूर हो गए उतना ही ज्यादा परेशान है। अगर विज्ञान के द्वारा कुछ होता तो फिर विज्ञान के चलते हम लोग ने ऐसा कर लिया होता कि सब लोग आराम कर रहे होते हैं, उनको सबके पास अपना खाना मिल रहा होता, और कोई, सबका एम तो यही ना कि परिवार के साथ रहें, एंजॉय करें,
और लेकिन उल्टा हो उसका उल्टा रहा है कि 12-12 घंटे 15-15 घंटे लोग सिर्फ काम ही काम करते चले जा रहे हैं और जिसका कोई अंत नहीं है। भौतिक भौतिक एनर्जी भी इतनी पावरफुल है कि आप पूरी जिंदगी भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चीजें वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं। तो भगवान इस बात को जानते हैं कि हाँ थोड़े समय ठीक है वो जाएगा, कोशिश करेगा इंजॉय करने की, लेकिन जहां पर लोग परफेक्ट नहीं है, यानी जहां पर लोग पवित्र नहीं है, वहां वो दूसरों के लिए परेशानियां क्रिएट करेंगे और वो जगह जो है वो नरक के समान बदतर होती चली जाएगी। ये भगवान जानते हैं। अगर कोई सोचे कि बुरे इंसान रह के भी कुछ अच्छा बना लेंगे या कुछ अच्छी जिंदगी लीड कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ये भगवान भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कई सारे अगर डेमोनाइक लोग हो गए और वो सोचे कि हम लोग हैप्पीली रह सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं, वो एक दूसरे को भी ट्रबल करते रहेंगे। तो इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड में हर कोई आपस में एक दूसरे को, उसको लग रहा रहता है मैं खुश रहूंगा, अगले को मैं ट्रबल कर देता हूँ, लेकिन इन द एंड एवरीवन इज सफरिंग, हर कोई परेशान ही हो रहा होता है। तो तो इस तरीके से आध्यात्मिक जगत भी है जिसमें भगवान के सारे भक्त हैं, और ये भौतिक जगत भी है जहां कोई भक्ति नहीं करना चाहता है। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही सैकड़ों गैलन ब्लड लगा के जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं वो कुछ लोगों को रेडी करते हैं कि भगवान की भक्ति करो। जो लोग करते हैं तो उनको समझ में आता है कि क्यों कहा जा रहा है, परंतु अदरवाइज देखा जाए तो किसी का भी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होता भगवान की भक्ति के। हाँ मैं कृष्णा को प्रेम करूं, यही एम रहता, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेम करूं, अपने बॉयफ्रेंड को प्रेम करूं, इसको करूं उसके करूं, लेकिन भगवान की तरफ किसी का सेंटर नहीं होता। और जिनका भी सेंटर भगवान की तरफ नहीं होता उसी तरीके के जीवों से ये भौतिक जगत भरा हुआ रहता है। तो तो इन उसके लिए भगवान ने ये शास्त्र बनाए हुए हैं जो आज की डेट में सब लोग सोचते हैं सब माइथोलॉजी है और हम माइथोलॉजिस्ट हैं। माइथोलॉजिस्ट लोग अलग अलग माइथोलॉजी पे कुछ कुछ अपना विवरण लिखते रहते हैं। जो खुद डिवोटी नहीं है वो भगवान की स्क्रिप्चर्स को नहीं समझ सकते हैं। ये भगवान ने पहले ही बोला है कि भगवान भगवत गीता में भी बोल रहे हैं कि भगवत गीता को अर्जुन इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि वो भगवान के परम मित्र हैं और भगवान के भक्त हैं। तो भक्त के अलावा कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसी रहती है और कॉन्शियसनेस की कवरिंग ऐसी होती है कि अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो उसकी कॉन्शियसनेस लेवल कभी उस लेवल पर पहुंचेगी ही नहीं कि वो वेदों को समझ सके या फिर भगवत गीता को समझ सके, श्रीमद् भागवतम को समझ सके। वो किसी को नहीं समझ सकता, वो कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी बड़ा स्कॉलर हो भौतिक जगत में, लेकिन स्पिरिचुअली उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा नीचे रहेगी कि वो कभी नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअल में शास्त्र क्या बोल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने ये सारे शास्त्र दिए हुए हैं ताकि अगर कोई भी, अगर वो थक हार जाता है इस भौतिक जगत से, वो बहुत ट्राई कर लेता है लेकिन उसके बावजूद उसको जब ये समझ में आने लगता है अरे ये तो भौतिक संसार तो एकदम दुखों से भरा हुआ है, इसमें तो कोई अंत है ही नहीं, मैं जितना भी ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करते करते तो मेरा बुढ़ापा आता जा रहा है, मे बी मैं 10 साल और जीऊं, 20 साल और जीऊं, फिर मेरी मृत्यु होने वाली है। तो क्या जिस समय भी वो इस तरीके से जब अपने को पूरी तरीके से हारा हुआ समझता है, जब वो समझ जाता है कि कुछ भी नहीं हो रहा उसका, वो चाहे जितना बड़ा स्कॉलर बन रहा है, जितना बड़ा साइंटिस्ट बन रहा है, तो अगर वो भगवान के जो पवित्र ग्रंथ है उनकी तरफ अपना रुख करे तो वो भगवान की कृपा के द्वारा उसको समझ सकता है। तो भगवान कृपा करते हैं अपनी जो दिव्य ग्रंथ हैं उसके द्वारा, और साथ ही साथ भगवान हमेशा जो सेंटली लोग हैं उन्हें भेजते रहते हैं, यानी संत महात्मा जिन्हें हम बोलते हैं। तो जैसे स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं, जो भी वेद वगैरह हैं, पुराण वगैरह हैं, हम लोग जानते हैं कि वेद व्यास जी ने उन्हें 5000 साल पहले डॉक्यूमेंट किया था, यानी लिखना स्टार्ट किया था, इसलिए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि कलयुग में लोगों की याददाश्त खराब हो जाएगी, हर कोई इंटरप्रेट कर रहा होगा, तो बेटर है कि मैं भगवान ने जिस तरीके से बोला है उसे एज इट इज लिख दूं। क्योंकि अगर मैंने लिखा नहीं तो फाइनली इतना ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि ओरिजिनल में भगवान ने क्या बोला और क्या हमें मिल रहा है लोगों से, वो एकदम डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। इसलिए व्यास देवा ने संस्कृत लैंग्वेज में जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, वो सारों की रचना करी, यानी सारे के सारे लिखे एज इट इज। So, in order to preserve the timeless Vedic wisdom for eternity, Lord Krishna created a chain of spiritual master who have passed it to our hand. Out of them, one outstanding for his spiritual acumen, compassion, knowledge, and determination was predicted thousands of years ago. यानी ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद आजकल के गुरुओं की तरीके से कोई भी आके बोलता है मैं गुरु हूं, ऐसा नहीं। गुरु भी जो पारंपरिक, जो प्रामाणिक गुरु है, उसका शास्त्रों में वर्णन होता है।
तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील प्रभुपाद के अपीयरेंस का ऑलरेडी वर्णन है. लॉर्ड कृष्णा डिस्क्राइब्ड टू द मदर गैंजेस, ब्रह्म वैवर्त पुराण जो कि आज से 5000 साल पहले लिखा गया है, that after 5000 years of Kali Yuga have passed, a great sage and worshippers of Krishna's holy name will appear and spread the chanting of Krishna name in the form of Hare Krishna Mahamantra, not only India but throughout the world. तो ये कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले उनका डॉक्यूमेंट हुआ ये स्टेटमेंट है कि 5000 साल जब कलयुग के बीत जाएंगे, और अभी इस समय श्रील प्रभुपाद के अपीयरेंस के समय 5000 साल कलयुग के बीते थे, तब एक ग्रेट सेज जो भगवान के पवित्र नामों का हमेशा उच्चारण करता होगा वो अपीयर होगा, स्प्रेड करेगा चैंटिंग ऑफ होली नेम्स. और सिर्फ खाली यही वर्णन नहीं है, बहुत जगह पर श्रील प्रभुपाद का वर्णन है शास्त्रों में. तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कई जगह वर्णन है, जैसे कि बाय द एंड ऑफ ब्रह्म वैवर्त पुराण वी फाइंड द नरेशन ऑफ डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड हाउ ऑल द holy river headed by personified Ganges approached him. So Bhagirathi Uvach, that is Mother Ganges is saying. So I will not read everything, but what she is saying that Ganga Devi said, "Oh Lord, best of lover, now that you are going to the supreme abode Goloka, what will be our situation here in this age of Kali?" The supreme personality of Godhead said, "Sinful people will come to you and upon bathing will give you their sin. You must remain like this on this earth 5000 years of age of Kali. O Ganges, then there will be many devotees worshipping me by my mantra, and merely by their touch, glance, and bathing, all those sin will be immediately burned." Thus, Shri Krishna predicted the appearance of a powerful devotee who spread the chanting of the names worldwide. और उसकी डिटेल्स एक्चुअली प्रिडिक्शन भी है, डिटेल्स डिस्कशन है between the discussion of Bhakti Devi and Narad Muni, that how she has predicted that basically the bhakti lata or the devotional services will be spread throughout the whole world by the appearance of Srila Prabhupada. So there are so many, there is a complete uh, predictions given in scripture. So like one of them is idam sthanan parityajya videsham gamyate mayas, that I will leave this place Vrindavan and travel to the foreign lands. So Bhakti Devi is saying that in Kali Yuga में मैं वृंदावन को छोड़ के विदेशों में जाऊंगी. So she is actually talking about that how the devotional services will leave the place of Vrindavan. So Prabhupada वृंदावन से विदेशों में गए थे भक्ति का प्रचार करने के लिए. तो उसका पूरा स्टोरी सीरीज है जिसको अगर आप पढ़ेंगे अगर सारे श्लोका को तो आपको समझ में आएगा हाउ इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड श्रील प्रभुपाद. सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला था कि टेकिंग द शार्प शॉर्ड ऑफ कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द Hare Krishna mantra Nam Sankirtan, I will root out and destroy the demonic mentality in the heart of all conditioned soul. And he has further predicted, Yadi papi chhadi dharma dure desha yaya, more senapati bhakt yaibe tathaya. That is, if more sinful people escape and give up religious principle, go far off countries. अगर जो अधर्मी लोग हैं वो अगर विदेशों में भी चले जाते हैं जहां पर भगवान का नाम को वैसे ही कोई नहीं मानता, इंडिया में भी आजकल लोग नहीं मान रहे, विदेशों में बिल्कुल नहीं, देन माई सेनापति भक्ता विल कम, यानी मेरा पर्सनल डिवोटी लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जिनके बारे में हमने पहले ही देखा है कि हाउ ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, ऑल द स्क्रिप्चर्स आर सिंगिंग देयर ग्लोरी. तो उन्होंने बोला कि मैं अपने सेनापति भक्ता को, यानी ये मिलिट्री फील्ड कमांडर भक्ता, यानी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा हर चीजों को पालन करने में, जो सबको भक्ति का पूरी तरीके से पालन कराएगा, ऐसे डिवोटी को मैं विदेशों में भेजूंगा. जो लोग भक्ति को छोड़ के विदेशों में भाग गए वो जो उनको भी जाके भक्त बनाएगा. तो ये चैतन्य मंगल में है. फिर उन्होंने आगे भी बोला, पृथ्वी ते आचे यादे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मेरा नाम, यानी इन एवरी टाउन एंड विलेज द चैंटिंग ऑफ माय नेम विल बी हर्ड. और भक्ति विनोद ठाकुर जो कि हम लोग अगर डिसाइप्लिक सक्सेशन देखें तो कृष्णा से डिसाइप्लिक सक्सेशन स्टार्ट होती है और 4 पारंपरिक डिसाइप्लिक सक्सेशंस हैं. एक लॉर्ड ब्रह्मा से स्टार्ट हो रही है जिसमें कि हम लोग आते हैं, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय. श्री लक्ष्मी जी से स्टार्ट हो रही है श्री संप्रदाय जिसमें कि रामानुजाचार्य जी आते हैं. लॉर्ड शिवा से स्टार्ट हो रही है जिसमें विष्णु स्वामी हैं. 4 कुमार से स्टार्ट हो रही है जिसमें निम्बरकाचार्य हैं. तो जितने भी डिवोटीज की अगर बात करें, माधवाचार्य और कोई नहीं, स्वयं हनुमान थे. रामानुजाचार्य स्वयं
लक्ष्मण जी थे, ये सब हम लोग जानते हैं। तो भगवान के परम भक्त ही अलग अलग संप्रदायों में आते हैं, और कलयुग में उन्होंने स्पेशली बोला कि सारे संप्रदाय भी ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में फाइनली जाके मिल जाएंगे। तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय स्टार्ट होता है लॉर्ड कृष्णा से, सारे संप्रदाय कृष्णा से स्टार्ट हो रहे हैं। ब्रह्म और एक ब्रह्मा की तरफ, एक ब्रह्मा जी जहां पर प्रचार करते हैं, एक में लॉर्ड शिवा, एक में फोर। तो कृष्णा जी ने नॉलेज दी है लॉर्ड ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को, नारद मुनि से व्यास को, व्यास से मध्वाचार्य को, फिर उस तरीके से पद्मनाभ नाभ नरहरि तीर्थ मध्वा, अक्षोभया जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्या निधि राजेंद्र जया धर्म पुरुषोत्तम ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, जिनके बारे में हम लोग ने लास्ट टाइम में सुना भी था, खीर चोरा गोपीनाथ की स्टोरी, कि किस तरीके से भगवान उनके लिए खुद ही खीर रखते हैं। उनके डिसाइपल ईश्वरपुरी, उन्हीं के डिसाइपल थे नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य एज वेल। नित्यानंद प्रभु यानी लॉर्ड बलराम, अद्वैताचार्य मतलब लॉर्ड शिवा, और उसके उनके ईश्वरपुरी के डिसाइपल थे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, हु इज कृष्णा हिमसेल्फ। फिर उनके 6 उनके डिसाइपल्स थे रूप स्वरूप सनातन, सो विच इज एक्चुअली द मंजरीज ऑफ कृष्णा इन स्पिरिचुअल वर्ड। सो एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी ये भगवान के जो डिसाइपलिक सक्सेशन है उसमें स्पिरिचुअल वर्ड से लोग आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मटेरियल वर्ड में लोग भगवान के डिवोटी नहीं है, इसीलिए वो मटेरियल वर्ड में है। तो स्पिरिचुअल मास्टर इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ड से आते हैं, और वो भक्ति को हम लोग देने का प्रयास करते हैं। सरस्वती ठाकुर महाराज से भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, यानी जिनके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, उन तक आई, और किस तरीके से श्रील प्रभुपाद ने फिर पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार किया और इस्कॉन नाम से इसको एस्टेब्लिश किया। तो इस्कॉन, कई लोग बोलते भी थे कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों नाम रख रहे हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस भी रख सकते हैं, बट उन्होंने बोला कि गॉड का नाम जब हमें पता है कृष्णा, तो क्यों ना हम डायरेक्टली कृष्णा नाम रखें, क्योंकि गॉड से कोई लोग सोच सकते हैं इम्पर्सनल गॉड है, या गॉड के बारे में सबको नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है कि कृष्णा ही गॉड है। तो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और जो कि सबके लिए है, क्योंकि गॉड सभी के लिए एक ही है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग किसी और को ध्यान लगा रहे हैं जब वो इम्पर्सनल फॉर्म पे फोकस कर रहे हैं, या जीसस क्राइस्ट लोग, या जीसस क्राइस्ट किसी और की तरफ डायरेक्शन कर रहे थे। एवरीवन इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स सेम कृष्णा। तो बिकॉज वी नो इट, तो इसीलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा। तो इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के बारे में भी पद्म पुराण में ऑलरेडी प्रेडिक्शन था कि किस तरीके से जगन्नाथपुरी क्षेत्र में परम भक्त भगवान के आएंगे, और किस तरीके से ग्राउंड वर्क एस्टेब्लिश करेंगे भक्ति के प्रचार का। और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद के आने का प्रेडिक्शन सारे शास्त्रों में। भक्ति विनोद ठाकुर जो कि अमंग वन ऑफ द मंजरीज थे, उन्होंने भी पूरा प्रेडिक्शन किया श्रील प्रभुपाद के बारे में आने से पहले ही, कि किस तरीके से मायापुर में एक पर्सनालिटी आएगी जो मायापुर चंद्रोदय मंदिर बन रहा है उसमें किस तरीके से पूरे विश्व के भक्त आके भक्ति करेंगे। तो उन्होंने बोला भी था कि इन ए शॉर्ट टाइम देयर विल बी वन संप्रदाय एंड दैट विल बी इन द ब्रह्म संप्रदाय, ऑल द संप्रदाय विल फाइंड देयर कंक्लूजन इन दिस संप्रदाय। दिस इज फ्रॉम द सज्जन तोषणी। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रेडिक्ट किया था कि किस तरीके से पूरे विश्व में मेरा नाम का प्रचार होगा, और हम लोगों ने देखे चैतन्य मंगल में किस तरीके से उन्होंने बताया है कि मैं अपने सेनापति भक्त को बोलूंगा। तो उस तरीके से श्रील प्रभुपाद हमारे पास, श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ इस मटेरियल वर्ल्ड में। एक्चुअली भगवान जब आते हैं इस भौतिक जगत में, तो उन लोगों के उनका शरीर भी स्पिरिचुअल होता है, लेकिन जब भगवान के भक्त आते हैं तो वो लोग भी एक्चुअली जीव तत्व होते हैं। तो जीव तत्व को मटेरियल बॉडी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोगों को जस्ट इस साइकिल से निकालने के लिए, हम लोग को इस इल्यूजन से निकालने के लिए भगवान के भक्तों को भी कितना कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि ये मटेरियल बॉडी हमेशा कष्टकर रहती है। अभी हो सकता है हम लोग अपने यूथ के पीक में, हम लोग 30, 30, 40 ईयर्स या 50 ईयर्स हैं, तो हमें लग रहा है कि नहीं ये शरीर कहाँ कितना दिक्कत वाला है। लेकिन जैसे ही आप 50 और क्रॉस करेंगे, आपको पता चलेगा शरीर में रहना कितना कष्टकर है, कितनी बीमारियां, कितनी तरीके के परेशानियों से परेशान होता रहता है। और श्रील प्रभुपाद की अगर हम लोग बात करें तो 70 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरे विदेश में जाके भक्ति स्टेब्लिश करी थी। उन्होंने कभी स्नो देखा भी नहीं था,
और पहली बार सीधे वो वहां गए और सबसे ज्यादा ठंडा समय वहां पर पड़ा था, और कोई भी अगर 70-75 उम्र का होगा तो उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल आएगी, जिसके पास ना तो कोई प्रॉपर रहने की जगह है, ना कुछ खाने का उसका ठिकाना है, और ना उसके पास बिल्कुल पैसा है। लेकिन वो किस लिए गया है? क्योंकि उसके उनके गुरु महाराज ने ऑर्डर दिया था उनको कि जब तुम्हारे पास कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले, यू गो हैव टू गो टू वेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस मैसेज ऑफ गॉड हेड थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। तो और जनरली क्या होता है कि जब स्पिरिचुअल मास्टर आते हैं आध्यात्मिक जगत से, तो कृष्णा अगर आते हैं या कृष्णा के एक्सपेंशन होते हैं, तो उनको तो पता रहता है कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, क्योंकि उनको कोई बॉडी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर कोई भी भक्त होता है, इवन अर्जुन से भी कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि यही भगवत गीता जब मैं पहले, आज से मिलियंस ईयर्स पहले मैंने जब सन गॉड विवाश्वान को दी थी, तब भी तुम उस समय वहां प्रेजेंट थे, बट यू हैव नॉट रिमेम्बर्ड इट, लेकिन तुम भूल गए हो और मुझे याद है। तो भूल क्यों जाता है इंसान? क्योंकि उसको शरीर बदलना पड़ रहा था। जब शरीर बदलना पड़ता है तो वो भूल जाता है। आध्यात्मिक जगत में शरीर नहीं बदलना पड़ता, लेकिन अगर कोई भी भौतिक जगत में आता है तो अगर जीव तत्व है वो, तो उसको मटेरियल बॉडी ही एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बट कृष्णा या विष्णु तत्व के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो मटेरियल बॉडी में है, उनकी स्पिरिचुअल बॉडी ही रहती है। तो मटेरियल बॉडी में जब आते हैं तो सारी सफरिंग वैसे ही होती है जैसे कि हम लोग सफर कर रहे हैं, वैसे ही भगवान के परम भक्त भी सफर करते हैं। लेकिन उनकी सफरिंग किस वजह से होती है? क्योंकि हम लोग भगवान की तरफ मुख करने से विचलित हैं, या हम लोग भगवान की तरफ मुख नहीं करना चाहते हैं। हमें लगता है हम कुछ ना कुछ करके बहुत कुछ एंजॉय कर लेंगे या कुछ अचीव कर लेंगे लाइफ में। हमें ये नहीं पता कि हमारे बाबा, परबाबा या दादा, परदादा सब के सब आज भी कहीं ना कहीं पर भटक रहे हैं किसी ना किसी योनि में। ऐसा नहीं कि वो चले गए, वो चले जा गए और कहीं और चले गए, नहीं, वो किसी कहीं ना कहीं इसी भौतिक जगत में आज भी कोई ना कोई और जन्म लेके कुछ और परिवार में कुछ और ट्राई कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारा भी हश्र होने वाला है। करोड़ों जन्मों में हम पिछली बार ट्राई करते रहे, हम शायद खुश रहेंगे, कुछ हम अचीव कर लेंगे, और यही आगे भी भविष्य में भी चलता रहेगा। तो इसी इल्यूजन से निकालने के लिए, क्योंकि ये इल्यूजन से तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि हम लोग प्यूरिफाइड ना हो, और प्यूरिफाइड खुद से हम लोग नहीं होते हैं। कोई ना कोई अगर आचार्य हम लोग को डायरेक्शन देता है, हम लोग को सही मार्ग दिखाता है, और अगर हम लोग उसको मार्ग को फॉलो करते हैं, तब हम लोग प्यूरिफाइड होते हैं, तब चीजों को हम लोग सही पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है। तो 1800 में भक्ति विनोद ठाकुर ने भी प्रेडिक्ट किया था कि सून देयर विल बी अ टाइम व्हेन चैंटिंग ऑफ कृष्णास नेम विल बी हर्ड इन इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी एंड अमेरिका। उन्होंने बोला था बहुत जल्द ही ये समय आने वाला है। तो कैसे ये पॉसिबल है? जितने भी एक्चुअली अगर कोई भी पूरी तरीके से प्यूरिफाइड होता है तो उसके लिए टाइम का ये गैप नहीं होता। जैसे कि हम लोग के लिए हमें नहीं पता है कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन अगर कोई प्यूरिफाइड है तो ही कैन सी, क्योंकि ये पूरा जो जो भी ये साइकिल है ना, ये एक पूरे साइकिल में चलता है। अगर कोई महाभारत पढ़े तो उसमें वो देखेगा कि किस तरीके से जो ऋषि हैं वो आगे भविष्य में क्या होने वाला है, कलयुग में क्या होगा, वो पहले ही प्रिडिक्ट किया हुआ श्रीमद् भागवतम में। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो पूरी तरीके से भगवान का भक्त है उसके लिए टाइम का ये फैक्टर नहीं रह जाता, वो आगे चीजें क्या होने वाली हैं वो देख सकता है। तो स्पिरिचुअल विजन से भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया था कि अभी बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि भगवान का नाम पूरे विश्व में, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, अमेरिका, हर जगह सुना जाएगा। तो तब लोगों को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि कैसे ऐसा पॉसिबल है कि विदेशों में कृष्णा को तो कोई मानता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, कैसे ऐसा पॉसिबल है। लेकिन वो देख सकते थे और उन्होंने बताया, और उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया कि किस तरीके से भगवान का एक भक्त आएगा जो भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करेगा। और उसी को फुलफिल करने के लिए श्रील प्रभुपाद का appearance हुआ. So in answer to these prayers and prediction, in the year of 1896, there appeared Abhay Charan Day, later known as his divine grace, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So जितने भी प्रीवियस आचार्य थे वो सब चाहते थे कि पूरे विश्व में सब लोग भक्ति करें, क्योंकि सब लोग सेम चीज से सफर कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं, यहाँ से हम शायद अमेरिका चले जाएं या दूसरी कंट्रीज में चले जाएं, शायद हमारी सफरिंग कम हो जाए, बट ये सब एक्चुअली मृग तृष्णा होती है। इस भौतिक जगत में कहीं पर भी चैन नहीं है, लेकिन इंसान सोचता रहता है यहाँ से वहां चले जाए, वहां से यहाँ चले जाए, शायद कुछ आराम हो जाए। जैसे हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि शायद यहाँ कुछ दिनों के लिए यहाँ चले जाएं, थोड़ा दिमाग को आराम मिल जाएगा, लेकिन अंतोगत्वा फिर से आके हम लोग उसी तरीके की दिनचर्या में हमें जाना ही होता है। तो उसी तरीके से सब जो आचार्य थे वो सब जानते थे कि भौतिक जगत में जो भी है, भले वो यहाँ रहे या कहीं पर भी रहे, सबको परेशान ही रहना है। हरे कृष्ण। मैं एक्चुअली म्यूट कर देता हूँ अगर कोई अनम्यूट है तो बैकग्राउंड नॉइस नहीं होगी। ओके, थैंक्स।
तो उसी प्रिडिक्शन को फुलफिल करने के लिए 1896 में अभय चरण के was later known as Divine Grace AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उनका अपीयरेंस हुआ। हरे कृष्णा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी नहीं बोल रहा वो म्यूट पे चला जाए। सो शिल प्रभुपाद जब अपीयर हुए, उनके फादर जो थे गौर मोहन डे, वो एक भक्त परिवार में उनका जन्म हुआ। तो बचपन से उनके फादर भी पूरी तरीके से डिवोटी थे। उनका एम लाइफ में ये नहीं था कि मैं कैसे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लाइफ एंजॉय करूं। वो बिजनेस करते थे, उनका कपड़ों का व्यापार था, लेकिन पूरी तरीके से कृष्णा पे डिपेंड होने की वजह से वो आराम से सुबह भगवान की पूरी आरती करते थे, फिर अपनी शॉप में जाते थे, फिर हरे कृष्णा, वो अपनी शॉप में जाते थे, वहां पर जो भी अपना बिजनेस होता था वो करते थे। शॉप में आने से पहले थोड़ा चावल चूहों के लिए रख देते थे। उनको पता था कि चूहों को भी भूख लगेगी, वही कपड़े जितने भी हैं वो काट सकते हैं, तो उनके लिए बेटर है कि मैं थोड़ा सा राइस प्रसाद रख दूं ताकि वो खा के वो सेटिस्फाइड रहे। और फिर वो घर आते थे, फिर आराम से भगवान की आरती वगैरह करते थे। और प्रभुपाद बताते हैं कि सिंपल लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी हम लोगों के पास बहुत कुछ था, मतलब सरप्लस में था हर चीज। कभी भी कोई कमी नहीं होती थी। फल जो भी खाना हो या जो भी चीजें खानी हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। वो हमेशा बल्क में खरीदते थे। तो एक्चुअली अगर कोई भी डिवोटी रहेगा तो ये समझ में आना चाहिए उसको कि कभी भी उसको कुछ कमी नहीं होगी। जनरली लोग सोचते हैं कि अरे वो नॉन डिवोटी है, उसके पास ज्यादा ओपुलेंसेस हैं, मैं डिवोटी हूँ मेरे पास नहीं है, या मैं भक्ति कर रहा हूँ मेरे पास नहीं है। बट एक्चुअली समझने की जरूरत है कि भगवान, अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता है और अगर उसके पास पैसा आता भी है तो वो एक्चुअली में रियल में लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं होती है, वो दुर्गा देवी की कृपा होती है। और दुर्गा देवी जहां पर भी रहती है वहां सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। तो उसके पास पैसा तो होता है लेकिन कभी भी उसके पास पीस ऑफ माइंड नहीं होता, सिर्फ उसका हमेशा वो डिस्ट्रेस्ड ही रहता है। लेकिन अगर कोई डिवोटी होता है और तो उसके पास लक्ष्मी देवी रहती है, और उसकी वजह से, क्योंकि उसके पास कृष्णा है तो लक्ष्मी देवी वहां पर स्टे करती है, तो उसकी वजह से हमेशा वो पीसफुल रहता है, आराम से भक्ति करता है, उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती है। और कोई कितना अगर कोई भक्त नहीं है तो वो कितना भी एक्वायर कर ले मनी, वो हमेशा परेशानियों से घिरा हुआ रहता है, क्योंकि माया देवी उसके साथ में रहती है, यानी दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी का काम ही यही है कि 3 तरीके के तापों से, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों से उसको परेशान करना। तो तो प्रभुपाद जब बचपन में जब 4 वर्ष के थे तो प्रभुपाद को बहुत अट्रैक्टेड थे जगन्नाथपुरी की तरफ। तो हम लोग जनरली देखते हैं अगर 4 साल का 3 साल का बच्चा है तो उसको टॉय खेलने या वीडियो गेम खेलने या कुछ कुछ और करने का मन होता है। लेकिन प्रभुपाद क्योंकि परम भक्त थे तो बचपन से उसके अंदर, उनके अंदर वही क्वालिटी थे। तो उन्होंने वो बहुत अपने पिताजी से उन्होंने जिद किया कि मैं रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, जो कि आप बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगा। 4 साल का बच्चे को आज की डेट में भी अगर हम लोग देखें वैसे भी इंटेलिजेंस गिरता जा रहा है कि 4 साल का बच्चा इतना भगवान के बारे में, उनकी रथ यात्रा कैसे करनी है। प्रभुपाद ने पूरी, जब वो 4 वर्ष के थे तो पूरा लीड लेके पूरी तरीके से एक छोटा सा रथ यात्रा कार्ट अपने फादर के साथ हेल्प करके बना के पूरी रथ यात्रा 7 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज करी, जिसमें वो डेली आरती करते थे, डेली प्रसाद बनता था। और जितने भी दूर दूर के उनके पिता के मित्र भी थे उनको लगा अरे इतना बड़ा तुमने प्रोग्राम आयोजित किया और हम लोगों को बुलाया नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो मेरे बच्चे ने अपना खेल, वो तो खेल कर रहा था। तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि नहीं ये बच्चा खेल कर सकता है। उनको लगा इतने बड़े लेवल पर रथ यात्रा 7 दिन पूरी ऑर्गेनाइज करी हमारे मित्र ने और हमको बोला नहीं। बट एक्चुअली प्रभुपाद उस समय 4 वर्ष की उम्र से ही उनका भक्ति के प्रति इतना ज्यादा झुकाव था। तो प्रभुपाद हमेशा किसी ना किसी तरीके से अपने मित्रों को सब भगवान की भक्ति में अलग अलग पास टाइम्स में एंगेज रखते थे, क्योंकि उनका उनका हमेशा से अटेंशन जो था कृष्णा की तरफ ही था। प्रभुपाद ने इवन बाद में बोला भी है कि वो और उनकी सिस्टर जैसे रहते थे, वो अगर पतंग भी उड़ाते थे तो हमेशा कृष्णा से प्रे करते थे कि कृष्णा फेवरेबल विंड रहे तो फिर हम लोगों की पतंग और ऊपर जाए। तो हमेशा उनके दिमाग में कृष्णा ही रहते थे। उन्होंने बोला भी है कि देयर वाज नेवर ए मोमेंट व्हेन आई हैव नॉट थॉट अबाउट कृष्णा। तो वो अगर कोई भी डिवोटी होगा तो वो हमेशा उसके मन में भगवान का विषय जरूर रहेगा। तो उसी से हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं किस तरीके से हमारे मन में, अगर हम बचपन से ही अगर हम लोग देखें तो हमारे मन में अलग अलग इच्छाएं रही होंगी, हम और पैसा कमा लें या फिर थोड़ा बड़े होने पे कि ठीक है हमारे किसी को गर्लफ्रेंड हो, किसी को बॉयफ्रेंड हो, अलग अलग अट्रैक्शन। लेकिन प्रभुपाद का हमेशा एक ही झुकाव था, किस तरीके से हमेशा ही वो भगवान की भक्ति में लगे रहे। तो यही अंतर होता है कि कोई स्पिरिचुअल मास्टर में और नॉर्मल हमारे जैसे लोगों में।
तो Prabhupada later attended Scottish Church College in Calcutta, which was administered by British. Later, he refused to accept his diploma from that college as a protest against British oppression, although he had actually completed all the requirement for the degree. तो प्रभुपाद को अच्छे से अच्छे कॉलेज में उनके माता पिता ने पढ़ाया, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। वो बहुत ही पढ़ाई में भी प्रतिभावान थे, तेज थे, लेकिन उसके बावजूद भी महात्मा गांधी जी ने आग्रह किया था कि सब लोग अपनी पढ़ाई को, जो भी डिग्री वगैरह है जो विदेशी लोग दे रहे हैं, उनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि विदेशी लोग हम लोगों के ऊपर पूरी तरीके से शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सारी माइंडसेट हमारे ऊपर थोप रहे हैं, तो उनको बॉयकॉट करना बहुत जरूरी। तो प्रभुपाद जी ने भी वो उनका गांधी जी का आग्रह स्वीकार करते हुए जो अपनी डिग्री थी वो रिजेक्ट कर दी थी। तो उसके बावजूद भी उनके जो उनके फादर के एक फ्रेंड थे डॉक्टर बोस, वो जानते थे कि बहुत ही प्रतिभावान लड़का है और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा ट्रुथफुल है, तो उन्होंने अपनी बहुत बड़ी उनकी केमिकल कंपनी थी, उसमें उनको मैनेजर बना दिया था शील प्रभुपाद को। तो शील प्रभुपाद की हम लोग फोटो देख रहे हैं, उसमें उनके साथ में उनकी सिस्टर हैं जो चेयर पे बैठी हैं, बीच में फादर हैं, लेफ्ट साइड में उनकी वाइफ हैं और गोद में उनके बच्चे हैं। सो तो 1918 में प्रभुपाद का विवाह हो गया था। तो प्रभुपाद का जब विवाह हुआ था तो प्रभुपाद एक्चुअली बहुत ही प्रभुपाद थोड़ी डिवोशनल वाइफ चाहते थे। उनको जो उनकी करंट वाइफ थी वो उतना उनको रुचिकर नहीं लगी, तो उनको ऐसा मन हुआ कि ठीक है मेरी इनकी जगह किसी और से विवाह होना चाहिए। लेकिन उनके फादर ने उनको बोला कि नहीं ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ पसंद नहीं है, तुम्हारे मन की नहीं है, क्योंकि जनरली इस भौतिक जगत में लोग वाइफ से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने की वजह से ही कभी भी भक्ति के विषय में नहीं सोच पाते हैं। लेकिन ऑलरेडी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हो अपनी वाइफ के प्रति, तो ये तुम्हें हेल्प करेगा। क्योंकि प्रभुपाद का जब प्रभुपाद का जन्म ही हुआ था, तो उस समय जब भी कोई जिसका भी बच्चे का जन्म होता था तो उसको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन किया जाता था। तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जिसने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन किया था उसने बताया कि ये 60 वर्ष की उम्र में ये लड़का संन्यास लेगा, और उसके बाद ये 70 वर्ष की उम्र में जब आएगा उसके बाद ये पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। तो लोगों को बहुत ही आश्चर्यजनक ये बात लगी, और उन्होंने ये, और उस एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बोला कि जैसे ये सन्यास लेने के बावजूद भी ऐसा नहीं होगा, बहुत ही अनोखे किस्म का सन्यासी होगा, यानी कि ये इतने भव्य भव्य भगवान के मंदिरों का निर्माण करेगा। क्योंकि पहले सन्यासी का मतलब लोग सोचते थे कि एकदम जो बगैर, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो एकदम ही कहीं पर जंगल में जाके रह रहा है, तो कोई सन्यासी होकर अगर मंदिरों का निर्माण करवा रहा है तो बड़ा ही आश्चर्यजनक समझा गया कि ये कैसे पॉसिबल है कि सन्यास लेगा और उसके बावजूद भी 108 मंदिर बनाएगा, तो कैसे ये पॉसिबल है। तो उनके फादर ने, क्योंकि फादर भी पूरी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छी बात है कि वाइफ जो है तुम्हारी तुम्हें हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी तुम्हारी कुंडली में लिखा हुआ है कि तुम 60 साल के बाद सन्यास लोगे और पूरे विश्व में तुम भक्ति का प्रचार करोगे, तो उस समय तुम्हें ये चीज हेल्प करेगी। आज को अगर तुम्हें बहुत ही तुम्हारे मन मुताबिक अगर तुम्हारी वाइफ होती तो शायद उस समय तुम ये डिसीजन नहीं ले पाते। तो उनको भी ये बात समझ में आ गई कि ठीक है, मुझे अभी आज को ये रियलाइजेशन नहीं है कि लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, तो कैसे ऐसा होगा मुझे बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन जो भी मेरे फादर बोल रहे हैं ही इज मोर रियलाइज, तो लेट मी एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। तो 1922 में तो जो भी तो भगवान, जैसा हम लोग को पता ही है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण यानी 5000 साल पहले से लेके चैतन्य महाप्रभु के आने तक यानी 500 साल पहले भी कृष्णा ने, यानी दोनों ही फॉर्म में, यानी कृष्णा स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, दोनों ही फॉर्म में बताया कि कैसे मेरा परम भक्त कलयुग में आएगा और वो भक्ति का प्रचार पूरे ओपन रूप में करेगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने, इवन दो वो भगवान थे, लेकिन वो छन्न अवतार के रूप में आए थे, यानी उन्होंने अपने को डिवोटी ही पोर्ट्रे किया, उन्होंने भक्ति का प्रचार बहुत ही खुले रूप में नहीं किया। कई लोग जानते भी नहीं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है, वो कैसे स्वयं स्वयं भगवान है। जगन्नाथपुरी में लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में, लोग नवदीप मायापुर धाम में जानते हैं, लेकिन यहाँ अगर और जगह देखा जाए तो लोग नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु के बारे में। भले ही सारे शास्त्रों में उनका बारे में वर्णन है, लेकिन सारे वर्णन डन फॉर्म में किए गए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, क्योंकि वो स्वयं नहीं चाहते थे कि लोग कलयुग में उनका वर्णन को इस्तेमाल करके स्वयं भगवान बनने की कोशिश करें, जो कि कलयुग में बहुत आम है। कितने ही बार लोग कल की अवतार बनने की कोशिश करते हैं कि मैं कल की अवतार हूं, और इस तरीके से लोगों को ठगते हैं। तो वैसा कुछ ना हो, इसलिए हर शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम से लेके हर पुराणों में, मत्स्य पुराण से लेके अग्नि पुराण से लेके भविष्य पुराण, हर पुराणों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, लेकिन हर जगह बस एक
श्लोक बना के छोड़ दिया गया। तो भगवान की इच्छा से ही, ये बहुत ज्यादा विवरण कहीं पर भी नहीं दिया, पूरे शास्त्रों में स्कैटर्ड है हर जगह भगवान का वर्णन, क्योंकि कलयुग में वो नहीं चाहते थे कि वो भगवान के रूप में हो, भगवान के भक्त के रूप में आए। तो किस तरीके से भगवान ने स्वयं, जब वो स्वयं आए या जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तब उन्होंने Srila Prabhupada के बारे में भविष्यवाणी करी। तो it was in 1922 when Srila Prabhupada met his spiritual master Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur for the first time. Bhaktisiddhanta told Srila Prabhupada, "You are a nice young man and you know English. Therefore, you should preach this mission of the Lord specifically to the English-speaking countries in the Western world." तो उन्होंने उसी समय, जब प्रभुपाद पहले तो जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद बचपन से बहुत सारे साधु सन्यासियों को देखते आए थे, और उन्हें हमेशा ये लगता था कि जो भी साधु सन्यासी है, मोस्टली उनको पैसा ही चाहिए होता है, और वो जनरली अंदर से, हार्ट से, हृदय से साधु नहीं होते हैं। तो वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके एक फ्रेंड ने बहुत पुश किया कि नहीं, ये बहुत अलग किस्म के साधु आए हुए हैं। तो पहले प्रभुपाद का नाम अभय अभय था, अभय अभय चरण डे। तो उन्होंने बोला कि अभय चरण तुम चलो, क्योंकि तुम हमारे साथ चलोगे, तुम टेस्टिफाई कर सकते हो कि वो सही में अच्छे सन्यासी हैं कि नहीं। तो जैसे ही वो अपने मित्र के साथ गए, उन्होंने दंडवत किया, क्योंकि वो कस्टम था कि सन्यासी को देखते दंडवत करना है। वो खड़े भी नहीं हो पाए थे कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सीधे उन्हें पॉइंट आउट करके बोला कि तुम नाइस यंग मैन हो, तुम्हें अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से आती है, तो तुम क्यों नहीं भगवान चैतन्य महाप्रभु का मिशन को लेते हो और इसे पूरे विश्व में प्रचार करते हो। तो श्रील प्रभुपाद को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि कैसे, मतलब मुझको डायरेक्टली ऐसा ऑर्डर कैसे बोल रहे हैं कि पूरे विश्व में मैं भक्ति का प्रचार करूं। तो उस समय वो भी गांधीवादी विचारों से घिरे हुए थे, कि गांधी जी जैसे बोलते थे कि हम लोग की सुनेगा कौन, क्योंकि हमें पूरे विश्व, हमें जो ब्रिटिश सरकार है उसने अपने अंडर में रखा हुआ, तो हमारी बातें सुनेगा ही कौन। तो उन्होंने वही जो तर्क था वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के सामने रखा कि हमारे बारे में, कि हमारा कौन सुनेगा, क्योंकि हम लोग, पूरा जो देश है वो तो गुलामी में जकड़ा हुआ है पूरा, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं मिल जाती इंडिपेंडेंस, तब तक ये मैसेज कौन सुनेगा। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बताया कि एक्चुअली इंडिपेंडेंस मिले या नहीं मिले, एक्चुअली हम लोग इस भौतिक जगत में आके सारे के सारे लोग इल्यूजरी एनर्जी के डिपेंडेंट है। तो ये जो मैसेज है भगवान का, लव ऑफ गॉडहेड का, यही रियल में इंडिपेंडेंट बना सकता है इंसान को। तो ये कोई भी समय, देश, काल आदि के ऊपर किसी भी तरीके से निर्भर नहीं है। जो भी सिचुएशन है उसमें तुम्हें इस चीज का प्रचार करना चाहिए। तो इस तरीके से जब उन्होंने उनका मैसेज सुना, तो उन्हें चैतन्य महाप्रभु के विषय में पहले से ही पता था, और जब इतना बोल्डली उन्होंने किसी को बोलते हुए सुना, तो उन्होंने मन में, हृदय में उसी समय ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को अपना स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये उन्होंने 1922 में ये उनको इंस्ट्रक्शन पहली बार जब वो मिले थे, फिर 1933 में, लेकिन तब तक वो, क्योंकि मन से वो उनको गुरु मान चुके थे, तो हमेशा 11 साल बाद जाके उनका हुआ भक्तिसिद्धांत ठाकुर महाराज के। So in 1935, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Saraswati told him to print as many books as the word. 1935 में जब उन्होंने पूछा कि महाराज मैं आपको, आप क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर, मैं आपको कैसे सर्व कर सकता हूँ, तो उन्होंने उनको एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि कभी भी अगर तुम्हारे पास कुछ भी पैसे आए, तो ये जो शास्त्र हैं इनको तुम अंग्रेजी भाषा में इनका अनुवाद करना और पूरे विश्व में इसको प्रचार करना, क्योंकि पूरे विश्व में लोग सफर कर रहे हैं, और इंडियंस भी बहुत ज्यादा सिर्फ कि वेस्टर्न क्या कर रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग मोटर कार में ट्रेवल कर रहे हैं, तो शायद वही सबसे अच्छी चीज होगी। वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, तो शायद वही एंजॉयमेंट होगा। लोग टीवी देख रहे हैं, तो शायद वही एंजॉयमेंट होगा। तो सब लोग वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, और वेस्ट वाले इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से थक चुके हैं इस भौतिकतावादी जीवन से। तो वहां पर प्रचार करोगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया में भी लोग लेना शुरू करेंगे। तो उन्होंने बोला कि इसलिए अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद करना, क्योंकि इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाने की जरूरत है। So following the desire of his spiritual master, Prabhupada began publishing his Back to Godhead magazine in 1944. He wrote them himself, had them printed, and even rode into town on the bus to distribute this one-page sheet. But he never stopped. तो उस समय बाद में 1944 में प्रभुपाद ने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जैसा निर्देश दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बैक टू गॉडहेड करके एक पेपर
लिखना शुरू किया। वो खुद ही से लिखते थे, खुद ही पेपर खरीदते थे, खुद ही उसे प्रिंट कराते थे, खुद ही उसे बांटने जाते थे लोगों को। अगर आप लोग वो एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के ऊपर एक टेलीविजन सीरीज भी बना था, अगर आप वो देखेंगे तो बहुत ही मार्मिक दृश्य है कि किस तरीके से प्रभुपाद खुद ही सारा काम करते थे और वो खुद से अपने सर पे लाद के सबको बांटने जाते थे। उनको हटा देते थे कि अरे आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ये, क्या आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम खुश हैं। तो कोई भी उनका मैसेज सुनने को रेडी नहीं होता था, लेकिन वो जानते थे ये मैसेज इतना इंपॉर्टेंट है, हर कोई ये फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है भौतिक जीवन में, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि भौतिक जीवन में हम भौतिक तरीके से ही इस चीज से पार पा लेंगे। हर कोई को ये लगता है अरे मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं 20 साल और कर लूंगा, फिर मैं इतना पैसा कमा लूंगा, फिर मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन ऐसा कभी भी होता नहीं है। 20 साल में जब तक वो जॉब वॉब करता है या वो करता है, तब तक पता चलता है और बड़ी बड़ी समस्याएं आ गई हैं, या जितना भी उसने कमाया वो तो एकदम किसी लायक है ही नहीं। तो इस तरीके से वो हमेशा ही परेशानी में घिरा हुआ रहता है, क्योंकि परेशान, और ये एक जन्म ही नहीं, जन्मों जन्म ये चीज चलती रहती है। लेकिन वो कभी इस बात को समझ नहीं पाता है कि एक्चुअल में वो स्पिरिट सोल है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और रियल में अगर वो कृष्णा की थोड़ी भी भक्ति करता है पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक गुरु को मानते हुए, तो वो भगवान के धाम वापस चला जाएगा, फिर इस तरीके से सफर करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उसकी मृत्यु होनी है, लेकिन मृत्यु होने के बाद फिर से उसको यही चीज शुरू करनी होगी। यानी अगर वो भौतिक जगत में ही रहा तो फिर से एबीसीडी से शुरू करना होगा, फिर नए परिवार को पूरी तरीके से उसको खड़ा करना होगा, फिर पैसा कमाना होगा, फिर मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ भक्ति करेगा तो इस जन्म के बाद से फिर से उसे इन सब चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा, और इस जन्म में जीते जी ही उसको सब कुछ, उसकी पूरी तरीके से उसका कॉन्शियसनेस रिवाइव हो जाएगी, वो चीजों को सही तरीके से देख पाएगा। ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ लगेगा कि मुझे बात माननी है कि हाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत है, वो खुद रियलाइज कर पाएगा। और अगर वो और भी ज्यादा एडवांस करता है तो वो खुद आध्यात्मिक जगत को देख पाएगा। तो ऐसा नहीं कि सीधे मृत्यु तक वो अंधकार में रहेगा, ऐसा नहीं, उसको स्वयं रियलाइजेशन पूरा हो जाएगा। तो प्रभुपाद सबको ये रियलाइज कराने के लिए बहुत मेहनत करते थे, बगैर कुछ खाए पिए वो पूरे स्ट्रीट में टहलते रहते थे। कितनी बार वो बेहोश होकर रोड पे गिर जाते थे, और जितने लोग पहले उनको जानते थे, क्योंकि पहले वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के वो भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए पूरी तरीके से लग गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पास समय बहुत कम है और यही सबसे बेस्ट चीज है जो मैं सबको दे सकता हूँ। तो आज भी वो बैक टू गॉडहेड मैगजीन लिख रहे हैं, कितने सारे लोग हम लोग पढ़ते भी हैं, मंथली बैक टू गॉडहेड वो मैगजीन निकल रही है। और उनके अगर प्रभुपाद के पुराने लेख भी अगर उस तरीके और किसने तो बात को कोई स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि सब कोई वेस्ट के पीछे भाग रहा था। फिर उन्होंने 1953 में लीग ऑफ डिवोटी, पहले तो कई लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं कुछ स्टार्ट किया, तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया में ही ट्राई किया। झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी का ऑर्गेनाइजेशन खोली, और बहुत खत्म नहीं पढ़ना चाहता। हर कोई नासा क्या कर रहा है, रोबोटिक्स में क्या है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, या मैगजीन्स क्या बोल रही है, या एक्टर क्या बोल रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनके घरों में क्या हो रहा है, सब लोग ये पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन किसी को भी आज भी उससे कोई सरोकार नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी क्लियर है माता जी? ओके प्रभु जी अभी आ रहा है, बट बीच बीच में इट इज जस्ट क्रैकिंग, सो द लेक्चर इज नॉट वेरी। सभी के लिए ऐसा हो रहा है, यस प्रभु जी। कुछ के लिए ही, सबके? एक मिनट। यस प्रभु जी। ओके, वेट करते हैं। सभी के लिए भूषण प्रभु। प्रभु आप भी कैमरा बंद कर दीजिए, आई थिंक थोड़ा कुछ बैंडविड्थ, थोड़ा कनेक्शन का भी इश्यू हो सकता है, आई डोंट नो।
भूषण प्रभु आप सुन पा रहे हैं? कैमरा बीच में ये बटन होता है, ये अगर आप दबाएंगे तो बंद हो जाएगा कैमरा। Yeah, it's for everyone. It's getting implemented, Prabhuji. ठीक है, But now it's okay, Prabhuji. It is okay. ठीक है, जब भी कभी ब्रेक हो तो आप मुझे बताइएगा। Prabhuji. Can't हरे hear कृष्ण। you, Prabhuji. Hare Krishna. एक मिनट। मैं अपना प्लेस चेंज करता हूँ, मे बी कुछ नेटवर्क का। अभी सुन रहा है प्रभुजी, ये जो हाँ। आपने बोला वो सुन रहा। ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा अभी क्लियर आ रही है? जी प्रभुजी। Yes, Prabhuji. ओके। सो 1959 में श्रील प्रभुपाद ने रिनाउंस ऑर्डर यानी संन्यास एक्सेप्ट किया एट द गौड़िया केशव मठ इन मथुरा टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर बाय प्रीचिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्रभुपाद कितनी बार ऐसा हुआ कि उनके स्वप्न में उनके स्पिरिचुअल मास्टर आए और वो बहुत उनको बोला कि अब तुम्हारा समय आ गया कि तुम संन्यास लो, लेकिन प्रभुपाद को हमेशा ही ये जैसे ही वो स्वप्न आता था वो बहुत डर जाते थे। उनको लगता था मैं कैसे अपना परिवार को त्याग सकता हूँ, लेकिन कुछ भगवान की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर, यही कह लीजिए, क्योंकि ये इसी मिशन के लिए भगवान के आए थे। भगवान ने पहले ही इसके विषय में बोला ही था कि मेरा भक्त आएगा और इस तरीके से प्रचार करेगा, कि ऐसा हुआ कि वो जो भी बिजनेस कर रहे थे वो बिजनेस में ऐसा हुआ कि उनको लॉस होने लग गया। उसके बावजूद भी वो बिजनेस कहीं जहां पे भी स्टेब्लिश करते थे कहीं पर चोरी हो जाती थी, सब लोग पूरा का पूरा बिजनेस लूट के चले जाते थे। तो फिर उन्हें फाइनली समझ में आया कि भगवान का कुछ और ही मकसद है। मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, और पहले क्योंकि उनको लगता था कि मैं बिजनेस बहुत बड़ा अपना एक्सपैंड कर लूंगा और उससे जो पैसा आएगा उसके द्वारा मैं पूरे विदेशों में प्रचार करूंगा और उस तरीके से इस्टेब्लिश करूंगा, लेकिन भगवान का कुछ और ही इच्छा थी। क्योंकि भगवान कभी भी किसी एक्चुअली पैसे रुपए पे डिपेंड नहीं करते, जो भी भगवान की इच्छा है वो होती ही होती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अभी जैसे कोरोना एपिडेमिक के चलते दिल्ली गवर्नमेंट, अगर हम लोग देखें, दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह ने बोल दिया था हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, लेकिन इस्कॉन में हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। तो ये कैसे पॉसिबल है? गवर्नमेंट इतना इतना टैक्स कलेक्ट करती है और इस्कॉन में अगर आप देखो तो कोई ज्यादा से ज्यादा अगर किसी के पास कोई फटा 10 का नोट होता है तो वो डोनेट कर देता है। एक्चुअली डोनेशन की लोगों के अंदर प्रवृत्ति ही नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल था कि उसके बावजूद भी दिल्ली गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, जब तक लिकर शॉप नहीं खुलेंगे हमारे पास कोई पैसा नहीं है। और इस्कॉन में डेली डेली 5-5 लाख लोगों को भगवान का प्रसाद मिलता रहा, क्योंकि भगवान ही अभी भी पूरे भौतिक जगत को उन्होंने पूरा कंट्रोल कर रखा है। तो वो जो भी चाहते हैं उनकी इच्छा के अनुरूप होता है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन कि पैसा है नहीं है। तो प्रभुपाद तो भगवान क्योंकि ये चाहते थे कि हाँ कि चीजें किस तरीके से हों, यानी उन्होंने ये दिखाना था उनको सबको भी कि किस तरीके से भगवान के अगर कोई पूरी तरीके से शरणागत भी है तो वो कार्य कर सकते। जैसे अर्जुन को उन्होंने पूरी तरीके से ग्लोरी दी थी, भले वो जानते थे कि अर्जुन जो भी तीर चला रहा था, हम लोग भी जानते हैं कि भगवत गीता में रियल में महाभारत के समय अगर कृष्ण भगवान नहीं होते तो जितने भी बाकी कौरव सेना वगैरह थी वो सब लोग मिलके हो सकता है अर्जुन के ऊपर हावी पड़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान उनके साथ थे तो इसलिए अर्जुन को कोई भी कुछ नहीं कर पाया। तो उसी तरीके से क्योंकि कृष्ण भगवान श्रील प्रभुपाद के साथ में थे इसीलिए उनके पास कोई पैसा रुपया नहीं था। जब वो वेस्ट के लिए जा रहे थे तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। पहले हम लोग मानते थे, हम लोग को पता था कि शायद 40 रुपए उनके पास थे, जो कि 8 डॉलर के बराबर है। लेकिन उनके बेटे ने क्लैरिफाई किया कि जाने से पहले वो 40 रुपए भी उन्होंने उनके बेटे को दे दिए थे कि वहां पर इसकी कोई मतलब इसका कोई मूल्य नहीं है, तो ये भी कुछ नहीं कर सकता वहां पर। अब मैं पूरी तरीके से भगवान के शरणागत ही हूँ। तो सिर्फ उनके पास कुछ श्रीमद् भागवतम के कैंटोस थे, यानी कि श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 3 पार्ट्स में उन्होंने लिखी थी, बस वो कैरी करके वो जा रहे थे। और उन्हें भगवान के पवित्र नामों पे पूरा विश्वास था कि अगर भगवान की इच्छा है कि पूरे विश्व में मेरे नामों का प्रचार हो तो फिर वो स्वयं उनके द्वारा होगा। तो इतना ज्यादा फेथ हम साधारण इंसान कभी भी भगवान के ऊपर नहीं रख सकते हैं। तो इसी से हम लोग को समझ में आता है कि अगर रियल में कोई, तो जो भगवान अपने भगवत गीता के श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर कोई मुझे सरेंडर करता है
तो मैं उसे वो प्रोवाइड करता हूँ जो उसे चाहिए और वो प्रोटेक्ट करता हूँ जो उसके पास नहीं है। लेकिन हम लोग कभी भी भगवान के ऊपर रिलाई नहीं कर पाते, हम लोग कभी भी भगवान के ऊपर फेथ नहीं करते। हमें लगता है हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम कुछ कर लेंगे। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर हम पूरी तरीके से भगवान पे फेथ करें, भगवान इज कैपेबल टू डू एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एज वेल। तो तो आज भी करोड़ों करोड़ों जगह पे इस्कॉन की तरफ से फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है करोड़ों गरीब बच्चों के ऊपर। और कुछ ऐसा अगर कोई ये देखना चाहे कि अरे फंड कैसे आ रहा है, तो वो कोई नहीं जानता कि कैसे भगवान का कैसे इतना प्रसाद वितरण हो रहा है। तो सब भगवान की कृपा के द्वारा हर चीज चलती है, भले वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो। तो तो जब बार बार उनके स्पिरिचुअल मास्टर उनके स्वप्न में आ रहे थे और बिजनेस में भी वो कुछ नहीं कर पाए, फाइनली ऐसा हुआ कि उनके पास कुछ पैसे रुपए नहीं रह गए। तो उनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने बोला कि देखो अब कुछ वैसे भी फायदा नहीं, तुम्हारा परिवार वैसे भी अब तुम्हारे प्रति कोई बहुत प्रेम में नहीं रहेगी, क्योंकि भौतिक जगत का ऐसा ही है, जब तक आपके पास पैसा है तो लोग बहुत प्रेम करेंगे, अगर पैसा कुछ भी नहीं है तो फिर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। तो वही सेम हुआ कि उनकी ना पत्नी को वो पसंद आ रहे थे, ना बच्चों को कोई उनसे लगाव रह गया था। तो उन्होंने बोला तुम घर में रहो या संन्यास ले लो, आज के समय में आप कोई किसी को मतलब भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। और रही बात तुम्हारे परिवार की, तो फिर मैं मेरे बच्चे वगैरह सब वेल एस्टेब्लिश है, मैं उनका पूरा ध्यान करूंगी रखूंगी, क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी वो भी पूरी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस थी। और उन्हें पता था कि मेरे भाई के भाग्य में क्या कैसा प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा, किस तरीके से मेरे गुरु यानी कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, वो जब भी ये बोलते थे कि मेरा एक भक्त पूरे विश्व में जाके भक्ति का प्रचार करेगा, तो हमेशा वो शील प्रभुपाद की तरफ देखते थे। और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य भी होता था कि अरे शील प्रभुपाद तो एक गृहस्थ हैं और हम सब लोग सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, हम लोग की तरफ देखने की जगह जब प्रभुपाद ये बात करते हैं तो उनकी तरफ क्यों देखते हैं। तो लोग ये नहीं जानते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जानते थे कि समय आने पर यही यही भक्त है, यानी वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी उनकी जानते थे कि ये मेरा परम भक्त या मेरा डिसाइपल जो पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करेगा। तो उनकी सिस्टर ने बोला कि अब वैसे भी कोई तुम्हें नहीं चाहता है परिवार में, तो तुम घर में रहो या बाहर रहो कोई फर्क नहीं, तो तुम जाओ इस समय संन्यास लो और जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ऑर्डर दिया है यानी पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करे, अब उसको फुलफिल करो, क्योंकि वैसे भी अब तुम्हारी उम्र 60 साल की होगी, अब पता नहीं कितने वर्ष और बचे हैं, और अब नहीं करोगे तो कब करोगे। तो फिर तो प्रभुपाद ने इस तरीके से सब लोगों ने उनको इनकरेज किया, तो उन्होंने संन्यास आश्रम लिया। तो सबके लिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो लोग ये कई बार डरते हैं कि अरे हम इस्कॉन ज्वाइन करेंगे तो हम संन्यास, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रभुपाद की बात हो रही क्योंकि वो स्पेशली इसी पर्पस के लिए आए थे पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करने के लिए। अदरवाइज कोई आराम से गृहस्थ जीवन में भी रह के कृष्णा को सेंटर में हर कोई रख के भक्ति कर सकता है, अब एज पर देयर कैपेसिटी। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद ने जब संन्यास लिया तो वो he took up residence in Vrindavan, the land of Krishna's birth. After some year, he occupied a room in the Radha Damodar temple. तो जब संन्यास ले ली, सन्यासियों के पास तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब राधा दामोदर टेम्पल के जो ओनर थे उन्होंने प्रभुपाद को देखा जब वो मंदिर के दर्शन करने आते थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास 2 कमरे हैं, अगर आज भी कोई जाएगा तो श्रील प्रभुपाद के वो कमरे सुरक्षित हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप इसका उपयोग करें। तो प्रभुपाद वहीं रहते थे, वहीं पर अपने टाइपराइटर से श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया करते थे, और वहीं पर वो अपना एक छोटा सा रूम था, यही रूम है, एक रूम में वो किचन था उनका जिसमें वो प्रसाद बनाते थे, और एक रूम में वो लिखते रहते थे। और उसमें भी कई कई दिन वो कुछ खाते नहीं थे, सिर्फ खाली वो भगवान के ग्रंथ लिखते रहते थे। कई बार ऐसा होता था कि वृंदावन के में बाकी लोग चिंतित हो जाते थे कि अरे बाबा जी या भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आए नहीं, रूम से बाहर नहीं निकले, तो अपने बच्चों को भेजते थे, जाओ तुम दूध लेके जाओ उनके पास, वो रूम से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, क्या हुआ। बट वो इतना ऑब्जॉर्व रहते थे कि वो खाने पीने की तरफ भी उनका ध्यान नहीं रहता था। उनको पता था कि अब मैं 60 साल का ऑलरेडी हो गया हूँ, बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि ये भौतिक, क्योंकि मैं भौतिक शरीर है, ये छूटना ही छूटना है, तो बहुत ही जल्द ये शरीर छूट जाएगा, इससे पहले मैं अपना स्पिरिचुअल मास्टर का दिया हुआ इंस्ट्रक्शन फुलफिल करूं कि जितने भी शास्त्र हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करूं। तो बगैर खाए पिए वो सुबह से रात तक यानी सिर्फ 2-3 घंटा सो के, जितना बॉडी को मिनिमम रिक्वायर्ड है, उसके बाद वो उन ग्रंथों का अनुवाद करते रहते थे। तो while living there, though almost penniless and sometime only eating every other day, he continued writing and distributing his Back to Godhead magazine. तो ये कितने आश्चर्य की बात है, उनके पास कई बार बिल्कुल कुछ भी पैसे नहीं होते थे। उनको अगर वो किताबें लिखने के लिए पेपर भी खरीदना होता था तो वो पैसे सेव करते थे 20-20 किलोमीटर पैदल चल के या बगैर कुछ खाए पिए रह के। तो एक बार उनका जो प्रिंटर था उसने सवाल भी उनसे पूछा कि प्रभुपाद आप अपने खाने पीने कपड़े अपने
पूरी तरीके से सारे कंफर्ट पे आप बिल्कुल पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं और सारा पैसा आप इन किताबों को लिखने में लगा दे रहे हैं, क्या फायदा है इसका? तो उन्होंने बोला क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसीलिए जो भी प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथ हैं, हम लोग को समझना चाहिए कि प्रभुपाद के खून से लिखे हुए वो सब ग्रंथ हैं। तो हम लोग को जरूर अपने जीवन में समय निकाल के उन्हें पढ़ के समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम लोग ये जो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस में हम लोग जी रहे हैं और जीते ही चले जाएंगे बगैर अपने जीवन का उद्देश्य को समझे हुए, उस उद्देश्य को समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं जाके हम लोग उस कार्य की तरफ प्रगति कर पाएंगे। अन्यथा माया देवी इतनी स्ट्रांग है कि कैसे ना कैसे करके आपको फंसा के रखेंगी रखेंगी, और इस जीवन में ही नहीं, आगे आने वाले करोड़ों जीवन में भी। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि प्रभुपाद ने जितना अपना खून पसीना लगाया है उन ग्रंथों में, उसे हम लोग समझने की कोशिश करें, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि को। So in addition to that, Srila Prabhupada seriously spent most of his time from 1959 to 65 translating the multi-volume Srimad Bhagavatam. आज कुछ भक्तों के पास श्रीमद् भागवतम होगी तो वो समझ सकते हैं कितना प्रभुपाद ने उनके लिए उसके लिए हार्डवर्क किया। और प्रभुपाद और कृष्ण भगवान जब भौतिक जगत से जा रहे थे तो सबने जितने भी सेंटली लोग थे उन्होंने पूछा कि भगवान आप चले जा रहे हैं तो अब क्या होगा इस भौतिक जगत का? तो उन्होंने बोला मैं जा रहा हूं लेकिन ये श्रीमद् भागवतम मेरी रिप्रेजेंटेटिव है, यानी अगर कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा तो उसको मेरा ही संग प्राप्त होगा। और आज में भी अगर कोई भी श्रीमद् भागवतम निकाल के पढ़ता है तो वो समझ सकता है कि भगवान स्वयं ही वो चीज उसको बता रहे हैं। उसकी जितना कॉन्शियसनेस का लेवल होगा उतना वो श्रीमद् भागवतम से चीजें समझ पाएगा। जितना और वो चैंटिंग करेगा और भक्ति करेगा उसके बाद श्रीमद् भागवतम खोलेगा उतना और समझ पाएगा। इस तरीके से श्रीमद् भागवतम इस तरीके की, क्योंकि वो कृष्ण भगवान स्वयं है तो उसमें इतनी पोटेंसी है कि आप जिस भी लेवल में, कई बार हमें लगता है हम बड़े फॉलन हैं, हम श्रीमद् भागवतम कैसे समझ सकते हैं, लेकिन आप जिस सिचुएशन में है वो किताब इतनी पोटेंट है कि वो इस सिचुएशन में आपसे बात कर सकती है, यानी उस सिचुएशन में आपको गाइड कर सकती है। इसीलिए हम लोग को हमेशा सब किसी को अपने घर में श्रीमद् भागवतम जरूर रखनी चाहिए। उसका अदर देन ऑस्पिशियस बेनिफिट कि अपने आप उस घरों में देवी देवताओं का वास रहता है जहाँ श्रीमद् भागवतम है, उसका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल बेनिफिट यह है कि अगर आप किसी भी समय, जब आप मोरोस हो गए, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई गाइडेंस नहीं है, तो वो एक सूर्य के समान है जो आपको गाइड कर सकती है हर सिचुएशन ऑफ लाइफ में। तो फिर बाय 1965 he had raised funds to publish the first 3 volumes of Srimad Bhagavatam. Armed with this, so पहला ही 3 वॉल्यूम में श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो जो था उसको लेके प्रभुपाद ने वेस्ट गए थे। So armed with this, Prabhupada felt ready to finally carry out the instruction of his spiritual master given him nearly 40 years earlier. Then he decided to travel to America. तो उस समय उन्हें समझ में आ गया कि अब मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम जाके विदेशों में भक्ति का प्रचार करो। तो उन्हें समझ में आ गया कि अब मेरे पास बहुत समय नहीं है, मुझे इसी समय ही फॉरेन कंट्रीज में जाना होगा और भक्ति का प्रचार करना होगा। तो उन्होंने उस ऑर्डर को कैरी आउट करने के लिए उस समय ने जलदूत की यात्रा करी। और जलदूत, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि रास्ते में उन्हें 2 हार्ट अटैक भी पड़े, और जब वो वहां पर पहुंचे भी तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना भौतिकतावादी जगह है और यहाँ भगवान मुझे क्यों लेके आए। लेकिन उन्होंने मनी में विचार किया कि अगर भगवान मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो जरूर ही उनका कोई मकसद होगा। तो कई बार वो जाते थे, जब वो 1 साल तक उनको कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रही थी तो हमेशा जाके वो वहां पर जाके शिप जहां पर से चलती है वहां से पूछते थे कि इंडिया के लिए शिप कब जाएगी वापस। तो बहुत ही निराश हो गए थे। लेकिन तो सब लोग बोलते थे कि अरे आप आके बस पूछते हैं लेकिन कभी जाते नहीं हैं। तो एक सबवे में उस समय जब उनको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं थी, वो अकेले ही टहलते रहते थे, तो सबवे कंडक्टर था वो उनसे ऐसी मजाक करता था कि अरे आप क्यों फिर भी यहाँ पर आप हैं, मतलब वेस्ट में आपका कोई जान पहचान वाला नहीं, आप पूरी तरीके से अकेले हैं, क्यों उसके बावजूद भी आप यहाँ पर बने हुए हैं, आप चले क्यों नहीं जाते हैं। तो तब उन्होंने बहुत ही एस्टोनिशिंग बात बोली जो उसने बाद में बताई थी। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, मेरे बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन समय मुझे और उन भक्तों को दूर कर रहा है। यह समय, ये सिचुएशन ऐसी है कि अभी वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही, लेकिन आगे आने वाले समय पे आप देखेंगे कि मेरे बहुत सारे मंदिर भी हैं और उन मंदिरों में बहुत सारे भक्त भी हैं। तो वो सबवे कंडक्टर को लगा कि अरे पता नहीं इतने बुजुर्ग हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल है, ये इतनी इनकी एज हो चुकी है, यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, इनके अकॉर्डिंग एकदम सिचुएशन नहीं है, आगे आने वाले समय में ये बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, और ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात सत्य हुई तो उन्होंने बोला कि जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर थे मैं उनसे तब मिला था
जब उनके पास कुछ भी नहीं था और तब उन्होंने ये बात बोली थी। तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ था, और आज मैं देख रहा हूँ कि वो देख पा रहे थे कि ऐसा होगा भगवान की कृपा से, जो कि मैं उस समय नहीं देख पा रहा था। तो तो not knowing anyone, he thought, I'm an old man, I cannot do very much, but what I can do, let me do in New York, which is the biggest of all cities in the world. So और कहीं पर भी वो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पता था कि सब लोग अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, तो वो चाहते तो पास में लंदन में भी जा सकते थे, इंडिया के सबसे पास लंदन था, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर मुझे कहीं इम्पैक्ट प्रोड्यूस करना है तो वो अमेरिका में मैं करूंगा, क्योंकि सब लोग अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। और वो उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, वो खुद ही जो श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ थे उन्हें लोगों को सेल करके जो पैसा आता था उसी से वो अपना निर्वाह करते थे, लोगों को इनवाइट करते थे। उस समय पर भी जो अपने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के प्रोग्राम करते थे, कई बार वो 200-200 लोगों के लिए प्रसाद कुक करते थे अकेले। आज हम लोगों को अगर बोला जाए तो 2 लोगों के लिए भी कुक करना कितनी मुश्किल बात है, और वो 70 वर्ष की उम्र में 200-200 लोगों के लिए प्रसाद खुद कुक करते थे, लोगों के बर्तन मांजते थे। किस लिए? ताकि लोग निकलें इस अंधकार से, उसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे। So humbly considering himself to be the most significant servant of the spiritual master, Prabhupada pushed on with great determination to try to accomplish many ambitious things before the time he would die. तो उनको पता था कि बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो खुद उन्होंने बोला भी है कि मेरा 70 वर्ष के ऊपर मैं हो चुका था और मेरा शरीर ऐसे काम भी नहीं करता था, क्योंकि 2 हार्ट अटैक पड़ चुके थे, तो हर जगह ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होता था उनकी बॉडी में। तो इसीलिए बाद के समय में भी बहुत उनको बॉडी में मसाज वगैरह की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि ब्लड प्रॉपरली पूरा सर्कुलेट नहीं होता था, हमेशा उनको दिक्कत रहती थी शरीर से। लेकिन उनको पता था ये जैसा भी भौतिक शरीर है, मुझे इसे पुश करना है, और ज्यादा से ज्यादा सोते नहीं थे एकदम भी, 2-3 घंटा सिर्फ सोते थे, खाते भी बहुत कम ही थे। तो उसके बावजूद भी वो सस्टेन कर रहे थे, क्योंकि ये भगवान ने मेरे गुरु ने मुझे ऑर्डर दिया, तो मुझे ये पूरी अपनी जान लगा के भी इसे फुलफिल करने का ट्राई करना है। भले ये शरीर मेरा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे पूरी तरीके से इसे पुश करना है। तो इसलिए 70 वर्ष के बाद भी, अगर आप लोग सोच सकते हैं, पूरे विश्व का 14 बार उन्होंने भ्रमण किया, पूरे विश्व में उनके मंदिर स्थापित हुए, और पूरे विश्व में वो हमेशा एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते रहे, ताकि सब कुछ मेंटेन रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर जगह उनके जाने से ही सब लोग फिर से उनकी, जब क्योंकि एक रियलाइज पर्सन जब कुछ बोलता है तो सबके हृदय पे प्रभाव पड़ता है, तो किस तरीके से उनके संगति करके वो सारे लोग भक्त आगे प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए सबको संग देने के लिए वो 14 बार पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया उस एडवांस एज में भी। तो in July of 1966, Prabhupada secured a storefront called Matchless Gift with an adjoining apartment at 26th Avenue. He began holding Bhagavad Gita class at 6 a.m. and 7 p.m. तो उनके उस वहां पर मैचलेस गिफ्ट करके एक शॉप थी, तो इसलिए प्रभुपाद की एक बुक भी है, उसका नाम है मैचलेस गिफ्ट। तो उन्होंने वो अक्वायर करी जब शॉप, उनके कुछ कुछ जो भक्त थे, जब वो कीर्तन कर रहे थे तो उनसे आके जुड़े थे, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग कुछ प्रभुपाद के लिए करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद के पास आते हैं, उन प्रसाद प्रभुपाद का खाते हैं, प्रभुपाद से भगवत गीता और भागवतम के बारे में सुनते हैं, तो उन लोगों को लगा कि हम लोग कुछ करें प्रभुपाद के लिए। तो उन लोगों ने एक मैचलेस गिफ्ट, एक छोटी सी दुकान थी, उसको किराए पे लिया, जिसमें प्रभुपाद लेक्चर कर सके, क्योंकि थोड़ी उनको जगह की जरूरत थी जहाँ पे वो लेक्चर दे सके। तो जो जो उसके पहले कोई ओनर था, वो अलग अलग एंटीक चीजें बेचता था, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं ये दुकान तो खाली कर रहा हूँ, मैं ये मैचलेस गिफ्ट का बोर्ड भी हटाता हूँ। लेकिन उनके जो नए नए जो भक्त थे, नए नए डिसाइपल थे, उन्होंने बोला नहीं, ये बोर्ड यहाँ लगा रहने दो, क्योंकि जो प्रभुपाद भी ऑफर कर रहे हैं वो भी मैचलेस है। तो इसलिए वो उस पर एक बुक भी है मैचलेस गिफ्ट, और प्रभुपाद की पहला जो सेंटर भी था, उसका नाम था मैचलेस गिफ्ट, 26th एवेन्यू में। तो only 10 months after his arrival to USA, prospective devotees started coming to his matchless gift temple. In 1966, Prabhupada officially founded the International Society for Krishna Consciousness. Some devotee argued for using, तो ये मैंने बताया, गॉड कॉन्शियसनेस की जगह उन्होंने बोला कि नहीं, कृष्णा ही नाम रखेंगे, क्योंकि कृष्णा हम लोग भगवान का नाम जानते हैं कि वो कौन है। So in those early days, Srila Prabhupada established his basic program for spreading Krishna consciousness, from which he never deviated. Every night he would sleep only 1 or 2 hours and then rise early to translate. क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कैंटो का ही अनुवाद और टीका किया था, यानी ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। वो बाकी के समय, बाकी पूरे दिन वो भक्ति का प्रचार करते थे, और रात में सिर्फ 2 घंटे सो के वो बची हुई शास्त्रों का इंग्लिश में अनुवाद करते थे। In the morning hour, he would have the early morning worship and then give lecture. The remainder of the day was devoted to outdoor preaching, managing and teaching his student about Krishna.
Guided by Srila Prabhupada, two couples among his disciples opened a Hare Krishna temple in San Francisco. After matchless gift in New York, that was the second ISKCON temple. फिर उनके दो शिष्य थे, पति और पत्नी, उन्होंने एक सैन फ्रांसिस्को में टेम्पल ओपन किया. फिर उसके बाद प्रभुपाद ने वेस्ट में बहुत सारे रॉक बीटल्स ग्रुप, इन सब लोगों के साथ भी हरे कृष्ण महामंत्र का एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और जिससे जो भी आमदनी हुई वो सैन फ्रांसिस्को टेम्पल उससे उन्होंने ओपन किया. हालांकि ये किसी भी गुरु के लिए करना बहुत ही मुश्किल था कि जहां पर सारे हिप्पी लोग रॉक सुनने आ रहे हैं, वहां हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने सुना के अपने दूसरे मंदिर के लिए फंड्स कलेक्ट किए और उससे दूसरा मंदिर एस्टेब्लिश हुआ. फिर his disciples were going out and opening new branches after New York and San Francisco. New temples were opened in Montreal, Los Angeles, Detroit, Boston, Philadelphia, Columbus. तो ये सब बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने इतनी जल्द, इतनी कम समय में इतने मंदिरों की स्थापना करी. तो एक्चुअली हम लोग को ये बात समझने की जरूरत है कि जब प्रभुपाद आए थे तो उसी के साथ ही उनके बहुत सारे क्लोज जो डिवोटीज या उनके बहुत सारे जो डिसाइपल्स भी थे, वो सब भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उनको असिस्ट करने के लिए आए थे. उनमें से कई सारे डिसाइपल्स जो थे, भगवान की इच्छा के द्वारा वो अलग अलग वेस्ट वर्ल्ड में अलग अलग यानी वेस्टर्न डिवोटीज के रूप में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो सब भी भगवान के परम भक्त थे. तो इसलिए उन सब लोगों के हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से पॉसिबल था कि पूरे विश्व में 108 मंदिर इतनी जल्दी जल्दी खुल गए. So in 1967, he returned to India and stayed at the Radha Damodar temple for a few months. In 1971, he visited Vrindavan with 40 Western disciples. They traveled across India, setting up public program for thousands of people. Many Indian people joined his spiritual family. फिर इंडिया में आके उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे प्रचार किया, क्योंकि पहले इंडिया से वो बहुत ही ज्यादा डिसगस्टेड हो गए थे जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इंडिया में लोग भक्ति करें, लेकिन इंडिया में कोई भक्ति करने में इंटरेस्टेड नहीं था. फिर उन्होंने फॉरेनर डिसाइपल्स को लाके फिर इंडिया में फिर से भक्ति का प्रचार शुरू किया. उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से ये जो अंग्रेज लोग हैं, जिनका की कोई कल्चर भी नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, जो कृष्णा को जानते भी नहीं, वो भक्ति कर रहे हैं. तो ये जो भगवत गीता है, श्रीमद भागवतम, ये आप ही के लैंड में बोली गई है. भगवान कृष्ण को आप लोग बचपन से जानते हैं, तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि आप लोग भक्ति करें? तो इस तरीके से उन्होंने इनकरेज किया सारे के सारे इंडियंस लोगों को, और फिर इंडिया में भी बहुत सारे प्रभुपाद के मंदिरों की स्थापना करी. कुछ उनके अनपैरेलल्ड जो कंट्रीब्यूशन है वो दिखाया जा रहा है कि he sent his followers chanting the name of God onto the street of cities and village. Thus the Hare Krishna mantra become famous in nearly every corner of the earth. तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे भी आदेश दिया था कि पूरे विश्व में मेरे नामों का प्रचार होगा, तो उनके सारे डिसाइपल्स को उन्होंने पूरे विश्व में भेजा, जो हरिनाम संकीर्तन हर जगह करते रहे. और सब लोग आज को डेट में हरे कृष्णा हर कोई जानता है. पूरे विश्व में किसी से भी बोलो तो सब हरे कृष्णा और इस्कॉन के बारे में जानते हैं. तो उन्होंने किस तरीके से हरे कृष्णा या कृष्णा शब्द को पूरे विश्व में प्रचलित कर दिया. He organized traveling bus parties in the USA and Australia to spread Krishna's teaching spoken in the days of yore and written 5,000 years ago in the timeless Vedic wisdom. उन्होंने ट्रेवलिंग बस पार्टीज पूरे विश्व में अलग अलग जगह भेजी, जहां पर लोग भगवत गीता वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ताकि भगवान का मैसेज विश्व के कोने कोने में पहुंचे और हर कोई जो इल्यूजन के प्रभाव में भौतिकतावादी जीवन में फंसा हुआ भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि सब लोग यही है, जो भी स्पिरिट सोल है वो सभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है. उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये इंडियन बॉडी है, ये वेस्टर्न बॉडी है. एक्चुअली एवरीवन जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में या इस पूरे मटेरियल यूनिवर्स में, वो सब स्पिरिचुअल वर्ड से ही गिरे हो. तो कोई भी अगर चैंटिंग करेगा सबको सेम प्रभाव आएगा. सब लोग अपना इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रियलाइज कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली सेंस कंट्रोल होगा, ऑटोमेटिकली दे विल प्योरिफाइड, और तब वो चीजों को समझ पाएंगे. तो इसलिए पूरे विश्व में ये भगवत गीता वगैरह का प्रचार हुआ, भगवान के पवित्र नामों का प्रचार हुआ. लंदन में उन्होंने अपने डिसाइपल्स भेजे जो कि बीटल्स ग्रुप से मिले. बीटल्स में जॉर्ज हैरिसन बहुत ज्यादा इंक्लाइंड था श्रील प्रभुपाद की तरफ. उसने प्रभुपाद का कीर्तन ऑलरेडी सुना हुआ था. उसने जो वहां पर भक्ति वेदांत मैनर करके एक वॉटफोर्ड में टेम्पल है, जो उसने अपने ही पैसे से एप्पल कंपनी जो उसकी गानों की थी उससे उसने डोनेट किया था श्रील प्रभुपाद के लिए. और उसने ही पहला म्यूजिक एल्बम चैंट एंड बी हैप्पी निकाला था, जो कि वर्ल्ड फेमस हुआ था, और वो सबसे फास्टेस्ट सेलिंग ऑफ द ऑल एप्पल कॉर्पोरेशन रिलीज हो गया था, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द बीटल्स. यानी बीटल्स के भी म्यूजिक सीडीज उतने जल्दी नहीं बिके थे जितना ये हरे कृष्ण महामंत्रा बिका था.
So Srila Prabhupada came to London the same year and for the first time addressed the English public in October 1969 in Cornway Hall. तो इस तरीके से पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया. He formally initiated approximately 5,000 disciples. These initiates represent a sweeping diversity of nationalities, races, ethnicities and religious background. उन्होंने टोटल 5,000 भक्तों को इनिशिएट किया जो कि पूरे विश्व में अलग अलग जाति, धर्म और रिलीजन को फॉलो करते थे. He spoke daily on the philosophy of Krishna consciousness, delivering thousands of formal lecture. Over 2,200 were recorded and archived. तो आप लोग अभी भी वो सारे लेक्चर सुन सकते हैं, वो यूट्यूब में या प्रभुपाद की अलग अलग ऑडियो लाइब्रेरीज में रखे हुए हैं जो आप सुन सकते हैं, जिन्होंने 2,200 लेक्चर दिए. He conducted many hundreds of informal conversation on the science of Krishna consciousness with his disciple, guest and friend. Over 1,300 were recorded and archived. उसमें से 1,300 अभी भी हैं, हम लोग सुन सकते हैं. He founded the Bhaktivedanta Institute to advance Krishna consciousness within the scientific community, engaging serious academic in the consideration of the science of self-realization. Scientific तरीके से उन्होंने भक्ति के प्रचार को पूरा बल दिया. उसमें कितने सारे लोग साइंटिस्ट लोगों ने, जो उनके डिवोटी, जो उनके डिसाइपल्स बने, उन लोगों ने साइंटिफिक तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट किया. क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज साइंस. किस तरीके से जीव की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से सोल अलग है, बॉडी अलग है, हर चीज साइंटिफिक तरीके से भी उन्होंने एस्टेब्लिश करी. क्योंकि जो भी शास्त्रों में लिखा है इट्स कंप्लीटली साइंटिफिक. क्योंकि जो भी सच है वो कभी बदलता नहीं है. जो भी बाकी थ्योरीज हैं वो बदलती रहती हैं कि कल ये थ्योरी प्रचलित थी, आज कुछ और थ्योरी है. लेकिन जो कृष्णा बोल रहे हैं वो कभी भी चेंज नहीं होता. क्योंकि कृष्णा ने पूरा भौतिक जगत बनाया है, कृष्णा ने इंसानों को बनाया. तो जो कृष्णा ने बोला वो कभी भी गलत नहीं है. तो साइंटिफिकली भी उसे प्रूफ प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को एनकरेज किया कि वो लोग इंस्टीट्यूट ऐसा खोलें जो कि अभी भी है, जिसमें साइंटिफिकली इस नॉलेज को प्रचार किया जाता है. So he had a discourse of interviews and philosophical discussion with news reporter, scientists, religious leaders and politicians, as well as meeting with the world-renowned dignitaries and celebrities. He skillfully managed an international society simply through letters and personal meeting, virtually without the use of a telephone. आजकल सब लोग सोचते हैं कि टेलीफोन से बहुत एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद को पता था कि जो भी वो मैसेज दे रहे हैं वो आगे आने वाले 10,000 साल तक यूज होने वाला है. इसलिए वो प्रभुपाद सिर्फ लेटर्स के द्वारा या पर्सनल मीटिंग जहां वो चीजें रिकॉर्ड होती थी उसको मेंटेन रखते थे. क्योंकि ये जो भक्ति का प्रचार है अभी 10,000 साल के लिए ये चलेगा. 10,000 साल के बाद ऐसा होगा, लोग और इतने करप्ट हो जाएंगे कि भगवत गीता वगैरह को एकदम डाइल्यूट कर देंगे, अपना इंटरप्रिटेशन लिख देंगे और फिर कोई भी भक्ति करके बैक होम बैक टू गॉडहेड जाना पॉसिबल नहीं होगा. उसके बाद फिर कल की अवतार इसीलिए कल के एंड में आएंगे और सीधे सबको मार देंगे ताकि, और फिर से सतयुग का स्टार्ट होगा. लेकिन 10,000 साल में बहुत ही अच्छा मौका है कि कोई भी भक्ति करे और निकले. और उसके लिए प्रभुपाद ने अपनी बुक्स दी और जो भी उन्होंने सारे मैसेजेस सबको दिए हैं. ही काउंसल्ड हिज डिसाइपल ऑन कॉम्प्लेक्स मैनेजरियल, फिलोसॉफिकल एंड पर्सनल इश्यूज इन मोर देन 6,000 आर्काइव लेटर. उन्होंने 6,000 से ज्यादा लेटर लिखे. आप सोचिए कि उन 12 सालों में ही उन्होंने पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण किया, श्रीमद् भागवतम और 70 किताबें लिखी और साथ में 6,000 लेटर उन्होंने लिखे या लिखवाए, पर्सनली टाइप किया या अपने डिसाइपल से टाइप करवाया. तो इतनी बड़ी बात है और इतनी सारी किताबें, इतने इंटरव्यूज, इतना सब कुछ जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है. ही इनॉग्रेटेड द रथ यात्रा फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इन मेजर सिटीज अक्रॉस द ग्लोब, इन इफेक्ट ब्रिंगिंग द पीपल टू द टेंपल. आज जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे विश्व में निकाली जाती है अलग अलग कोनों में. तो वो प्रभुपाद ने ही पॉसिबल किया कि भगवान के दर्शन सब लोग कर सके. क्योंकि पूरे विश्व में सब लोग भटक रहे हैं, परेशान है. तो जगन्नाथ के रूप में जब भगवान बाहर निकलते हैं तो सबको दर्शन देते. तो नॉर्मली जो जनता इस्कॉन से नहीं भी कनेक्टेड है उसको भी मौका मिलेगा एक बार भगवान के दर्शन करे, और जो भी जगन्नाथ रथ यात्रा देखेगा उसको भी स्पिरिचुअल लाभ होगा. तो इसके लिए पूरे विश्व में उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा की स्थापना करी. In 1971, he planted the seed of Krishna consciousness in Moscow, thus reaping the same preaching strategy he previously used in USA. तो ऐसी जगहों में, यानी रशिया वगैरह जैसी जगह जहां पर एकदम भगवान का आप नाम भी लोगे तो आप जेल चले जाओगे, वहां पर भी उन्होंने टूर कर करके 1-2 लोगों को कल्टीवेट किया. और किस तरीके से उन लोगों ने 1-2 लोग जो कल्टीवेट हुए थे, एक भगवत गीता जो उनके पास थी उसे हैंड राइट कर करके, आज की डेट में रशिया में हजारों हजार भक्त हैं. तो किस तरीके से जहां पर भगवान का नाम भी लेने पे आपको जेल डाल दिया जाता है, तो वहां पर सीक्रेट प्रीचिंग के थ्रू, क्योंकि लोगों को निकलना इस साइकिल से बहुत जरूरी था. गवर्नमेंट पूरी तरीके से बैन करी थी, कुछ भी भगवान का नाम भी नहीं लेना है. क्योंकि भगवान को मानना मतलब हमारे अगेंस्ट रिबेल करना. तो इस तरीके से जैसे चाइना वगैरह में कि कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता, हर चीज, सारी प्रीचिंग छुप के ही होती है. तो उसी तरीके से वहां पर भी उन्होंने भक्ति का बीज डाल दिया और वहां पे भी बहुत सारे भक्त निकल आए.
सो Srila Prabhupada created the first chain of vegetarian, जो गोविंदा रेस्टोरेंट है हर इस्कॉन में, उन्होंने भगवान के प्रसाद पे भी बहुत जोर दिया, क्योंकि आज की डेट में भी कितने सारे लोग होते हैं जिन्हें फिलोसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन भगवान का प्रसाद खाने से ही वो भक्ति में फिर से प्रोग्रेस कर पाते, तो इसलिए उन्होंने गोविंदा स्टेब्लिश किए। संडे लव फीस्ट प्रसादम उन्होंने स्टेब्लिश किया, जिससे आज भी हम लोग देखते हैं कि करोड़ों करोड़ मिलियंस ऑफ फूड इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी डे, which is a sanctified prasadam offered to Krishna. He set up farm communities to teach simple living and high thinking, emphasizing cow production and dependence on God and nature. तो कितने सारे भक्त आए जिन्होंने बोला कि अरे हम लोग अब ऑब्वियसली अब एमएनसी या इंडस्ट्रीज इन सब जगह काम नहीं कर सकते हैं, तो प्रभुपाद ने उन्हें सिंपल लिविंग के लिए पूरी तरीके से फार्म कम्युनिटीज वगैरह बनाई वेस्ट वर्जीनिया में, और बहुत सारी जगह ऐसे एस्टेब्लिश है जहां लोग भक्त पूरी तरीके से कृषि फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, काऊ मिल्क प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, और बहुत ही खुशी से अपना भक्तिमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनके बच्चे वगैरह भी बहुत ही अच्छे से भक्तिमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो जानवी माता जी, जानवी हैरिसन, जिनका मैंने भेजा भी है, जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन वगैरह निकालती हैं, तो वो सब लोग वहीं के बच्चे हैं। तो वहां पर उनको उसी तरीके से वहां एजुकेशन भी मिलती है उन्हें, और कोई ऐसा भीड़ भाड़ या मोटर कार या इन सब चीजों को यूज नहीं, पुराने तरीके से उन्होंने ये सिखाया कि किस तरीके से गांव का जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है। उसमें पूरी तरीके से इंसान कृषि के ऊपर या फिर मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है, कृषि में जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ उसे दूसरों को सेल करके या जो भी उनको बदले में चाहिए वो सब स्टेब्लिश किया जा सकता है, और इतना कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है खुशी रहने के लिए, खुश रहने के लिए, वो उन्होंने दिखाया सिखाया वहां पर अपने भक्तों को। तो उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वेस्ट में स्टार्ट करी कृष्णा कॉन्शियस वे में बाय फाउंडिंग गुरुकुला सिस्टम इन डलास। फिर उन्होंने अभी अगर देखें मायापुर में, वृंदावन में, हर जगह ऐसे श्रील प्रभुपाद के स्कूल्स भी हैं जहां पर स्टार्टिंग से ही भक्ति को सिखाया जाता है, क्योंकि अगर जितना भी एक समय जितनी इंसान भक्ति कर लेता है उसके अकॉर्डिंग उसका रियलाइजेशन होता है। अगर बचपन से वो थोड़ी भक्ति करता रहेगा तो उसको बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से रियलाइजेशन हो जाएगा, एंड ही कैन रिटर्न बैक होम बैक टू गॉडहेड। तो इसलिए बचपन उन्होंने वो भी टारगेट किया कि बचपन से ही लोगों को भक्ति के बारे में थोड़ा कुछ पता चले। तो in 1974, shocked and saddened upon seeing the group of village children fighting with the street dog over scraps of food, Srila Prabhupada told his students to begin serving free meal to the poor. तो आज हम लोग देखते हैं पूरे विश्व में जहां पर भी गरीब लोग हैं उस सब जगहों पे जाके इस्कॉन के डिवोटीज प्रसाद का वितरण करते हैं। उसका रीजन क्या था कि मायापुर में एक बार जब बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम उन्होंने किया था, फिर प्रसाद बाहर जितना भी बचा हुआ प्रसाद होता है जूठन, वो उन्होंने बाहर फेंकी हुई थी और बहुत कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तो प्रभुपाद ने खिड़की से जाके देखा कि कुछ गरीब बच्चे जो थे वो कुत्तों से झगड़ रहे थे उस जूठन को खाने के लिए। तो प्रभुपाद रोने लग गए, उन्हें लगा कि इतना ज्यादा लोग गरीब हैं, इतना ज्यादा, क्योंकि भगवान की भक्ति लोग नहीं करते हैं तो इस तरीके के दुख उठाने पड़ते हैं। तो उस दुख को निवारण भी भगवान के प्रसाद के द्वारा ही पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है वो भक्ति ना करें लेकिन भगवान का प्रसाद खाने से भी कम से कम अगला जन्म उनको एक बेटर ह्यूमन बीइंग या भक्ति करने का और मौका मिलेगा। तो उन्होंने बोला जितने भी लोग हैं जिनके पास प्रसाद की कमी है, जिनको खाने को नहीं है, उन सबको ये प्रसाद वितरण किया जाए। तो इवन स्टीव जॉब जो कि हम लोग जानते हैं एप्पल का फाउंडर था, तो उसने भी बोला कि वो गरीब था क्योंकि वो अनाथ था और उसे गोद लिया गया था। जब भी उसे कुछ अच्छा खाने का मन होता था तो वो 8-10 किलोमीटर पैदल चल के जाता था और हरे कृष्णा टेम्पल में यानी इस्कॉन में प्रसाद खाया करता था। तो बड़े से बड़े लोग भी सब एग्री करते हैं कि हाँ, जब वो गरीबी की हालत में थे तो उन्हें कहीं ना कहीं इस्कॉन में प्रसाद मिला है। तो Prabhupada's followers were inspired to expand that original effort into a global network of free kitchens, van and mobile service established daily delivery to homeless and destitute people around the world. तो इसलिए जब अभी कोरोना एपिडेमिक भी हो तो आप देखेंगे इस्कॉन ने ही सबसे ज्यादा, इवन दिल्ली गवर्नमेंट में अरविंद केजरीवाल ने ये एक्सेप्ट भी किया कि हम लोगों के पास कुछ मीन नहीं था लेकिन इस्कॉन वालों ने फ्री में सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया। बाकी सारी जितनी भी स्पिरिचुअल संस्थाएं थी सब लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, यानी किसी कोई आगे नहीं बढ़ा। सबको लगा कि अब पता नहीं कोरोना हो गया, हमारे जो फंड्स हैं हमारे पास ही रहे, कहीं और न जाए। लेकिन इस्कॉन में सब लोग जानते हैं कि पूरी तरीके से कृष्णा ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, पूरा भौतिक जगत भी। तो उन्होंने पूरी तरीके से जो भी जितना भी कुछ उनके फंड्स थे वो सारे के सारे लोगों को, जो लोग मजदूर जो भी सफर कर रहे थे उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दिए। क्योंकि कृष्णा ने बोला ही था कि हम लोग क्योंकि प्रभुपाद ने बोला ही था हम करोड़ों करोड़ों प्रसाद डेली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि हम लोग और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ कृष्णा पे डिपेंडेंट है। तो ये अभी भी सब भक्त करके दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से कृष्णा पे डिपेंड होके भगवान की सर्विस कर रहे हैं आज भी लोग।
So he recorded more than 20 albums of devotional services. He established 108 temple on 6 continents, installed the deities of Krishna in each center and trained his disciple in the process of deity worship. तो उन्होंने अपने जीते जी ही जो उनकी भविष्यवाणी थी 108 मंदिर और उन सब में भगवान के अर्च विग्रहों की स्थापना करी और सब डिसाइपल्स को पर्सनली ट्रेन किया कि वो किस तरीके से भगवान के अर्च विग्रह की पूजा कर सकते हैं. Srila Prabhupada, however's most significant contribution is his books. Highly respected by scholars for their authority, depth and clarity, they are used in numerous colleges worldwide. इवन अगर हम देखें विदेशों में कई जगह एज ए टेक्स्ट बुक ये यूज होती है संस्कृत के को समझने में या कल्चर को समझने में. इवन कैम्ब्रिज यूके में भी अभी हुआ है कि स्कॉन को अपने उनके करिकुलम में ऐड किया गया है. तो श्रील प्रभुपाद की बुक्स सबके द्वारा रिवर्ड होती हैं. He wrote more than 70 books on the science of Krishna consciousness, sleeping only a few hours per day. Dozens of prominent scholars and educators from the leading university praised his work. जिसने भी उनका वर्क पढ़ा उस सबने ही बोला कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है. इसलिए जिसको भी मौका मिले उसे प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. He founded the BBT, that is Bhaktivedanta Book Trust, in 1972 to produce his book. By 1976, over you can see 55 into 10 to the power 6 literature had been published in the 25 languages. His books are being distributed in almost every country, making the BBT's world's largest publishers of spiritual and philosophical texts. विश्व में सबसे ज्यादा बुक्स जो डिस्ट्रीब्यूट करता है या लिखता है वो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है. तो so for this reason तो प्रभुपाद ने प्रभुपाद की भगवत गीता के बारे में बहुत लोगों ने बोला ही है, सब लोगों ने कि किस तरीके की वो बुक है और अलग अलग लोगों का आगे चर्चा भी की. अभी समय हम लोग का खत्म हो रहा है तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरीके से पूरे विश्व में उन्होंने लोगों को कन्वर्ट कर दिया. जो हिप्पीज थे वो सारे के सारे हैप्पीज हो गए, किस तरीके से सब लोग भक्त बन गए. तो essence is that take advantage of this rare opportunity of this human form of life. There are 84 millions different species of life throughout which we are rotating life after life. So getting a human body is not an everyday affair. This most auspicious opportunity only come after many millions of lifetime in the lower species. So anyone who does not utilize their human life for self-realization is making the greatest mistake. When this happens, it is the greatest tragedy, and unfortunately today this neglect of human form has become the standard behavior of the entire human society. तो इसलिए अब हम सब लोगों को इंसान का जन्म मिला है. प्रभुपाद ने किस तरीके से आखिरी समय तक सिर्फ इस मैसेज को प्रीच करने के लिए पूरी तरीके से अपनी शक्ति लगा दी. तो हम लोग अब उसका इस्तेमाल करें और भक्ति करें और हम लोग भी थोड़ा प्रयास करें कि किस तरीके से हम लोग इस साइकिल से निकल के बैक टू गॉडहेड जाएं. तो इसी के साथ ही मैं ये सेशन अभी खत्म करता हूँ. आई नो कि थोड़ा एक्सटेंड हो गया और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो भक्ति वृक्षा मटेरियल है वो कवर करेंगे आज, क्योंकि प्रभुपाद को समझना पहले ज्यादा जरूरी था. देन हम लोग समझ पाएंगे कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं और क्यों वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो अभी बता सकता है. आप लोगों को सबको सुनाई दिया राइट? थैंक यू. थैंक्स. हरे कृष्णा. थैंक्स आपका आज ज्यादा समय लिया बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था, सो आई थॉट टू कंक्लूड इट टुडे. हरे कृष्णा. थैंक्स एवरीवन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक्स. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.